members. So it's a great pleasure for all of us to have Professor S.C. Verma with us. So we are not taking much time. I would request sir to please come on the dais with Professor Raghunath Sahu, sir. So I request everyone to give a huge round of applause. I request Professor Raghunath Sahu, sir, to give a brief introduction. I know brief is a very small word for him, so in like few words he'll explain and he'll brief about our Professor S.C. Verma. Thank you so much. So namaste to all of you. Before becoming brief, I am nervous looking at the audience. And I guess for the first time we have very good audience for this outreach program. And let's give a big hand to the audience first. So good afternoon to all of you. And on behalf of Indian Institute of Technology and Director Professor Suhas Joshi, so I, Professor Raghunath Sahu, the convener of Institute Seminars and Outreach Committee, I extend a very warm welcome to our esteemed guest, Padma Shri Professor H.C. Verma, a celebrated physicist of the country, I would say. And a very warm welcome to IIT Indore fraternity. I think the number is huge today. The teachers and school children from various schools of Indore. Why did you become a scientist rather than a doctor, a lawyer, or a businessman, like the other kids in the neighborhood of Brooklyn? My mother made me a scientist without ever intending it, answered a young boy. While other parents used to ask their kids, did you learn anything today? My mother always asked me, E.G., did you ask a good question today? That difference, asking a good question, made me become a scientist. This is the story of Isidore Rabi, 1944 Nobel laureate in physics for the discovery of NMR, nuclear magnetic resonance. I am sure all of you will ask a good question today. And I promise anybody asking a good question, you will have a selfie or a picture with Professor S.C. Verma. Okay? So I promise that, and I guess Professor Verma will allow me, and this will be a more vibrant academic session ever in IIT Indore. So IIT Indore is the top IIT among second and third generation IITs. This is my perception. In terms of research and training the next generation, we have taken popularization of science as a social responsibility, and the whole institute works towards empowering the young minds, as you can see today. Beamers is our flagship outreach program with eminent personalities like Padma Shri Professor H.C. Verma have decorated the outreach program. We, the IIT Indore community, feel proud of it. So it is my fortune to be introducing to all of you the one who does not really need an introduction, one of the most admired and loved teachers of India, Professor Harish Chandra Verma, popularly known among the students as HCV. A vast majority of the audience knows him from the 2 volumes of the books, Concepts of Physics, published in 1992, so well written that it did not even require a second edition. How many of you have read this book? Please raise your hands. Somebody should take a picture. I think from this side I cannot take a picture now. It is very good. Thank you. And during the preparation of JEE Main, JEE Advanced, and most of the students very ardently follow your books. And most of the students report the monkey and mirror attached
to either ends of the pulley to be their most favorite problem. I was told I should be brief. So Professor Verma obtained his BSc degree from Patna Science College and subsequently his master's and PhD from IIT Kanpur. And Professor Ajay Ghatak, another famous teaching personality, I would say. So he once mentioned in ISER Bhopal Nasi induction program that IIT Kanpur is the Stanford of India. And I believe that IIT Indore in one day should be Princeton of India. So later on, inspired from his teachers, as has been expressed by him in one of the recent interviews, he went on to become a lecturer at Patna Science College, where he stayed for 15 years as a lecturer and reader. It was during this period that his very well-known book was written and published. He also discussed this thing with our students of IIT Indore in a separate interaction. So after this, he resigned from Patna Science College in 1994 to join as an assistant professor at IIT Kanpur. And he also mentioned in that interaction, when he was about to be promoted to be professor, so he resigned and joined as assistant professor in IIT Kanpur. So that in a personal interaction, you should ask what motivated him. Okay, that is also interesting. So his research spans across both the theoretical and experimental aspects of study of condensed matter systems, using methods and techniques of nuclear physics. So you can see, the interdisciplinarity already is encoded. So he has published more than 130 research papers in journals having high scientific repute, and moreover, these have received over 1,700 citations in total. Professor Verma actively works towards making physics reachable, understandable, enjoyable for the aspiring learners. As an effort in this direction, he has designed more than 600 low-cost experiments for the classroom setup. As all of you might have seen from the poster of the talk today, he will be shedding light on some of these. For someone who wants to follow the experiments in their technical details, they can be found on his personal webpage. And Professor Verma has also founded the National Anveshika Network of India, NANI, a flagship program of the Indian Association of Physics Teachers, IAPT. NANI conducts the National Experimental Skill Test with the help of several Anveshika coordinators from all over the country. This competition is awaited with great enthusiasm by the physics community of India. As a being who has spent the majority of life and career in enhancing the position of physics research in India by staying both on the main stage and backstage, that is, through outreach to students and thus inspiring them to choose physics as their career choices, as Professor Verma himself did, it is natural that his contribution be recognized as an esteemed level. Professor Verma was awarded Maulana Abul Kalam Azad Shiksha Puraskar in 2017 by the Bihar government, felicitated by the Honorable Chief Minister of Bihar, Shri Nitish Kumar ji, for his book, Concepts of Physics, and for the NGO Shiksha Sopan that has established where value-based education is given to students coming from economically weaker, unprivileged sections of the society. He was then awarded Padma Shri in 2020, felicitated by then Honorable President of India, Sri Ramnath Kovind ji, for his significant contribution to physics education and science and engineering. It must be clear by now that one can go on introducing Professor Verma for whatever duration of time they wish to, but we must respect the constraint placed upon by time. And I now request Professor Verma to kindly deliver his much awaited Institute Public Lecture remarks. And I believe I was brief. Thank you. Thank you, sir. Just before the start, I would request sir to present a memento or planter to the sir to welcome him. Come in.
Okay, so thank you very much for your kind introduction and conducting this whole show. Okay, so there is a poster. वो poster लगाना तो. So you saw the poster, right? Did you find anything unusual in the poster? Do you find something which is special? How many of you are from schools? Okay, quite a lot. So observe this poster, 15 seconds more, and if you find something unusual or something which should be talked about specially, हाँ, क्या फिर से जोर से बोलना? Educational experiments. Okay. Huh? Yeah. So what is wrong in that? My educational experiments. That seems okay. उसमें कुछ है क्या? आप बताओ, कुछ क्या देखा आपने उसमें गड़बड़ या unusual? यहां लिखा है 3:30 PM IST और बगल में घड़ी बनी हुई है. और उसमें 4 बज रहे हैं. तो आपने शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि 3:30 IST तो 4 बजे से पहले क्या शुरू होगा, इसलिए आपने पहले से ही 4 बजा दिए. तो ऑब्जर्वेशन ना, साइंस अगर करना है तो सबसे पहली चीज होती है ऑब्जर्वेशंस. ऑब्जर्व कर, जिस चीज को मैंने देखा, सबने देखा, लेकिन मेरी आंखें अगर थोड़ा अंदर घुस के देख रही हैं तो फिर मैं साइंस करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं. और अगर मेरी आंखें नहीं देख पा रही हैं तो या तो फिर आंखों का थोड़ा इलाज विलाज करके देखना शुरू कर दो, और नहीं तो फिर देखना बंद ही कर दो. साइंस करो ही मत, और कुछ करो. दुनिया में साइंस के अलावा बहुत कुछ करने के लिए है, और ओवर एम्फसाइज साइंस को करना खतरनाक है. क्योंकि जो दैट अच्छा, हिंदी किसको किस आर देयर पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल इन हिंदी? ये बात मैंने अंग्रेजी में बोली है. अगर मैं हिंदी में बोलता तो इसका कोई मायने नहीं था. So it seems that everyone is comfortable in Hindi. So whenever I switch to Hindi, I should not be conscious about it. Okay. तो जो कोमल भावनाएं होती है ना, मनुष्य के दिल की, जो दिमाग की जो कोमल भावनाएं होती हैं, जिससे सोसाइटी चलती है, जो हमारी जो सॉफ्ट लोगों के साथ प्यार करने का, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का, खुद को खुश रखने का, ये जो कोमल भावनाएं हैं, ये साइंस से आती हैं, साइंस से भी आती हैं. लेकिन जो दूसरे आर्ट के फॉर्म हैं, म्यूजिक है, डांस है, तरह तरह का स्कल्पचर है, ये जो आर्ट के फॉर्म हैं, वहां से और भी ज्यादा बढ़िया आती है. तो साइंस को ओवर एम्फसाइज भी करने का जरूरत नहीं है. अगर मेरे को साइंस नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, कोई बात नहीं. लेकिन अगर करनी है साइंस, देन यू हैव टू बी ए वेरी गुड ऑब्जर्वर.
And once you are a good observer, then there may be many questions which will come into mind. So जैसे अभी कह रहे थे अपने डॉक्टर साहब कि did you ask a good question today? वो सवाल है, did you ask did that good question occur to you? तभी तो पूछोगे ना, वो अकर किया क्या? और वो अकर तभी करेगा when you can observe things with those X-ray eyes. All right, so let's come to my experiments, my educational experiments. So in fact, there are this, when I was preparing this PPT during my transit from Lucknow to Indore, 2 hours flight, so later on when I finished, I found that it had 61 slides. Okay, and I had no time to revise and reduce. So there are 61 slides, but देखो हम कितना minutes उस पे लगाते हैं मालूम नहीं मुझको. All right, next. So this is part 1, which I have written non-intentional experiments. My experiments in education, but this in part 1, I did not intend to do these experiments, but finally I could do that. Yeah, next. Okay. So the first experiment is that there was no schooling for me and no homeschooling, nothing, till the age of 10 years. At the age of 10 years, first time I was taken to a school. Before that, my father taught me some arithmetic, basic arithmetic, and some English, little bit words and little bit sentences, small, I go, you go, he goes, those kind of sentences. Because my father himself never went to a school in the whole of the life. Okay, so I was not taught in the school or in home. And then I was taken at the age of 10 years for a school, Naveen Ganesh Pathshala, and then I was tested by the principal of that school. In his chamber, he asked some questions on mathematics and Hindi and English and some general knowledge type or something. So he did some 15-minute test and then declared that he is fit for class 6, admit him in class 6, and I was admitted. Now this experiment, which I did not plan to do, the results were fantastic. The results were fantastic. आपको बताते हैं कैसे. Next. Okay, so no emphasis on English or English medium, nothing like that. Naveen Ganesh Pathshala was Naveen Ganesh Pathshala, and my father's name is also Ganesh. So probably that is why he took me to that Naveen Ganesh Pathshala. I don't know. Okay, next. No tuitions. Next. Right. Now because till the age of 10 years, skipping all the classes 1 to 5 and absolutely nothing like nursery, KG, lower KG, upper KG, etc. I learned in those 10 years at the fastest pace. So that's the result of the experiment. Okay? Now if you look at this picture, this boy, his age is some 3.5 years. Now he has started going to school in Kendriya Vidyalaya IIT Kanpur. Now, is he not learning? Is he not learning the thermodynamics? That water has phases, vapor perhaps he doesn't know, but liquid phase and the solid phase. And then this temperature is very low, so it feels very cold. Is he not learning that? So learning without school, learning without syllabus, learning without an educator, no examination, no term examination, no homework,
no restrictions, no periods, 8:45 to 9:00, you have to learn English. Absolutely nothing like that. So this is the fastest pace at which a child learns, and that time is before the school system takes over. And for me, that time was extended to 10 years. And so I learned so many things. I learned to observe. I learned to derive my own conclusion. There was no one to tell me the conclusions. No one told me that this is cold and this is hot and this is this and it moves this way, it moves that way. No one. So I learned all these things to think, to observe, to think, to derive conclusions, to derive my own set of rules by which the nature goes, and so on and so forth. So that was my first experiment. Okay, next. Okay, yeah, so natural way of learning, this picture is similar. Yeah, next. Yeah, press the button. Okay, press the button once again. Yes, is the same message from this picture also. So next. Yeah, चलो आगे बढ़ाओ भाई. Yeah, okay. Now learning from events is the natural strength of everyone, right? Learning from the events. Our learning starts at day 1 after our birth. And this whole learning is from the events. We see some events happening in the surrounding, and from there we start learning. The whole language we learn, right? In the first 3 years or first 2 years, the whole one language we learn. Okay? कैसे सीख जाते हैं उसको? कोई सिखाता नहीं है, कोई बताता नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है, कोई प्रोग्राम्ड नहीं होता है, कोई टाइम टेबल नहीं होता है, बट लोग बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूं. तो जो हो रहा है वहां से लर्न करना, ये हमारी नेचुरल हैबिट है. एवरीवन हैज दिस स्ट्रेंथ. दिस इज आवर नेचुरल स्ट्रेंथ टू लर्न फ्रॉम द इवेंट्स. ओके, and that is being tried with the machines in the name of artificial intelligence. यही करते हैं ना, उसके सामने कुछ रख देते हैं. AI में क्या करते हैं हमें पता नहीं है. I'm not a computer science student, and in fact I asked many people who are working in this AI कि आप एक illiterate व्यक्ति को बताना है कि AI में क्या होता है, क्या बताओगे? तो वो यही बताते, उसके सामने बहुत सारे सिचुएशंस रख देते हैं. उसके बाद वो AI जो है उनको एनालाइज करता है और एनालाइज करके उसके कंक्लूजन्स निकालता है. दैट्स व्हाई वी ऑल द टाइम डू. वो एक नाम बड़ा बढ़िया सा हो गया आर्टिफिशियल. वो तो हम जन्म से कर रहे हैं, हम शुरू से यही तो कर रहे हैं. मेरे सामने बहुत सारी सिचुएशंस है, उनको मैं देखता हूं और वहां से मैं लर्न कर जाता हूं कि अच्छा इसमें ऐसा होता है, उसमें वैसा होता है. प्रेडिक्शन भी मैं करने लगता हूं. मैं प्रेडिक्शन करने लगता हूं कि अगर दूध ज्यादा देर तक रह गया चूल्हे के ऊपर तो उबल जाएगा. क्योंकि मैंने देखा है पहले उबलते हुए, तो मैं करता हूं. दैट इज व्हाट AI इज ऑल अबाउट. मेरे को जितना बताया, लोग जितना समझा पाए एक इलिटरेट व्यक्ति को, उसके अनुसार. सो वी आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन इस पूरे विधा के अंदर में. चलो नेक्स्ट. अच्छा ये बताओ भाई, स्कूल वाले और कॉलेज वाले और इंदौर वाले, IIT इंदौर वाले, आपने न्यूटन का पहला नियम, गति नियम, कब सीखा? 10th में, 9th में? कब सीखा भाई बच्चे लोग? 9th में सीखा. जब 9th में क्या, 9th क्लास में, है ना, स्कूल के 9th क्लास में जब आप थे 13-14 ईयर्स के, तब आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ सीखा. नाउ थिंक ऑफ ए चाइल्ड ऑफ द एज 2 years प्लेइंग विथ ए टॉय. ओके, एंड देन कुछ हुआ, उसकी मम्मी ने वो जो दूध पीने के लिए बुला लिया, उसने टॉय रखा यहां, दरी के ऊपर टॉय रखा और दूध पीने चला गया. दूध गर्म हो गया, अब टॉय से फिर खेलना है. वो बच्चा कहां जाएगा टॉय लेने के लिए? जहां रखा था वहीं जाएगा. क्यों? उसको कैसे मालूम कि वो वहीं मिलेगा?
दूसरी जगह नहीं मिलेगा, दूसरे कमरे में जाके नहीं खोजेगा, पड़ोसी के घर में जाके नहीं खोजेगा, छत पे जाके नहीं खोजेगा, गार्डन में जाके नहीं खोजेगा, जहां रखा था वहीं जाके फिर से उठाएगा। करेक्ट करेगा ना? हाउ डज द चाइल्ड नो अबाउट इट? बिकॉज द चाइल्ड हैज ऑलरेडी लर्नड if an object is at rest, it will remain at rest. वो कहीं नहीं जाएगा, वो जहां रखा था वहीं मिलने वाला है। unless an external force acts। यही है ना न्यूटन का पहला नियम भाई। तो बच्चे को पता था तभी तो वहीं पे गया है, नहीं तो दूसरी जगह जाके इधर उधर खोजता ना कि अपने आप चली गई होगी कहीं, मेरा टॉय कहीं चला गया होगा अपने आप। वो जानता है, आप भी जानते थे 2 साल की उम्र के अंदर में, 14 साल के तक इंतजार आपको नहीं करना था। और वो अनलेस वाला पार्ट भी आप जानते थे। इफ द चाइल्ड फाइंड्स दैट द टॉय इज नॉट देयर, वो तुरंत जाके पूछेगा मम्मी उठाया क्या? मैंने तो यही छोड़ा था, किसने उठाया मेरा टॉय? हल्ला करेगा कि नहीं करेगा? यानी उसको पूरा न्यूटन का नियम पता है। An object at rest will remain at rest unless there is an external force on it. तो हम बहुत सारी चीजें देख के सीखते हैं, लेकिन जब हम स्कूल सिस्टम में आते हैं तो हमें कहा जाता है कि जो सीखा उसको अपने पास रख, जो हम सिखा रहे हैं वो सीख। फिर आप उसको सिखाते हो बड़े बड़े शब्द लगा करके, और वो बड़े बड़े शब्द को पूरे लोग समझते नहीं है कि क्या उसका मतलब है, तो याद करते रटते। तो आपको लगता है कि आपने 14 साल की उम्र के अंदर में फर्स्ट लॉ सीखा है। आपने उस समय में सेकेंड लॉ भी सीखा था और थर्ड लॉ भी सीखा था एट द एज ऑफ 2 years। अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो अगली बार मुझे नहीं बुलाएंगे यहां पे। लेकिन 2 साल का बच्चा न्यूटन का तीसरा नियम भी जानता है और दूसरा नियम भी जानता है, पहला तो जानता ही जानता है। ओके, चलो नेक्स्ट। तो मैंने अपने 7 साल बचाए ना। आप जब 3 साल की उम्र में गए थे स्कूल में, तब से आपकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी उसको लोगों ने कहा इसको अब इस्तेमाल करने का जरूरत नहीं है, अब हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ना। तो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ को दबा दिया गया। मेरे को 10 साल के बाद वो धंधा करने की लोगों ने कोशिश की, तो 7 साल तो सीधे सीधे बचा लिए। और छोटे बच्चे को तो आप कुछ भी करो, उसको मजबूरी है, बड़े लोग जैसा करेंगे वो करना ही पड़ेगा। उस बच्चे में तो ताकत नहीं होती है, क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा रो लेगा, चिल्ला लेगा। लेकिन माता पिता जो कहे करा करना चाहेंगे वो करा के ही दम लेंगे। लेकिन बच्चा बड़ा हो जाएगा तब करवाना मुश्किल है। तो 10 साल की उम्र में मैं जब स्कूल जाऊंगा तो स्कूल सिस्टम मुझे करप्ट करेगा, इसकी संभावनाएं बड़ी कम है। मैं रेसिस्ट करूंगा। 3 साल का बच्चा रेसिस्ट नहीं करेगा। तो 7 years डायरेक्टली बचाए और पता नहीं कितने साल इनडायरेक्टली बचाए। ओके, सो दिस इज the experiment that I call it an experiment because this is an experiment। जो कोई नहीं करता है, जो कोई नहीं करता मैं करता हूं, वही तो एक्सपेरिमेंट होता है ना। जो सभी करते हैं वो तो सभी को पता है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट क्या रहा? एक्सपेरिमेंट का मतलब है कि देयर शुड बी समथिंग जिसका रिजल्ट मुझे पता नहीं हो। आप डॉक्टर के पास जाते हो, पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर साहब एक दवाई दिया उन्होंने, पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर गए, दूसरी दवाई दे दी उन्होंने, पेट दर्द ठीक नहीं हुआ। फिर आपने अपने दोस्त को बताया कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं तो इतनी दवाइयां खा रहा हूं, डॉक्टर ने बदल बदल के दवाई, पेट ठीक नहीं हो रहा है। तो आपका दोस्त कहता है अरे उसके यहाँ चले गए, अरे वो डॉक्टर तो ऐसा ही है, वो तो पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो जब रिजल्ट पता नहीं होता है उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। पूछो जितने रिसर्च करने वाले यहां पे एक्सपेरिमेंटलिस्ट, ये सारे जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट उसी को कहते हैं जिसका रिजल्ट पता नहीं होता है। और ये लोग पता करते हैं कि अच्छा ये होता है ये एक्सपेरिमेंट करने से।
ओके, तो ये 10 साल तक स्कूल नहीं भेजना, ये तो सब लोग नहीं करते ना। तो मेरे पिताजी ने किया और हमें उसके रिजल्ट्स मिले, वो मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। ओके, चलो नेक्स्ट। सो लर्निंग इज ऑलवेज जॉयफुल एंड लर्निंग इज द टिकट टू सक्सेस। आपको 5वीं क्लास में कितने नंबर आए थे, 4थी क्लास के इम्तहान में वो टर्म टेस्ट के अंदर में कितने आए थे, मंथली टेस्ट के अंदर में कितने आए थे, या 8वीं क्लास में कितने आए थे, 9th क्लास में कितने आए थे, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप देख रहे हो, मेरे को तो एक भी नंबर नहीं आया ना, मेरे को तो एक भी नंबर ही नहीं आया, मैं परीक्षा ही नहीं देता, नंबर कैसे आता? और जब परीक्षा दी तब भी नहीं आया। जब क्लास 6 की पहली बार परीक्षा हुई मेरी, तो मुझे पता चला अच्छा परीक्षा नाम की भी कोई चीज होती है। सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए, सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? आज तो मैं यहां खड़ा हूं ना, आपने बुलाया इतने प्यार से। तो लर्निंग इज द टिकट टू सक्सेस। आपने अगर लर्न किया है, आपने सीखा है, आपने सोचना सीखा है, आपने सोचना, आपने देखना सीखा है, आपने सोचना सीखा है, आपने खुद से सॉल्यूशन करना सीखा है, खुद से कंक्लूजन्स निकालना सीखा है, वो लर्निंग अगर आपने की है, तो आपको ना किसी नंबर की जरूरत है, ना किसी परीक्षा की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। लॉन्ग टर्म में जिंदगी में आप बहुत तरक्की करोगे। और लर्निंग नहीं करोगे तो ये नंबर वंबर सब बेकार हो जाएंगे। ये ग्रेड कार्ड जो है ना, जिसपे बड़े बड़े नंबर लिखे रहते हैं, दहाई की जगह पे 9 लिखा रहता ही है, और इकाई की जगह पे भी कुछ कुछ बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं, और कभी कभी 3 अंकों की भी संख्या लिखी रहती है। किसी काम के नहीं है वो, किसी काम के नहीं है वो, नहीं काम आने वाले। अगर आपने ये सब सीखा नहीं है, देखना नहीं सीखा है, सोचना नहीं सीखा है, तो कुछ नहीं काम आने वाला है। वो आपके 75 हो, चाहे 85 हो, चाहे 95 हो, या 99 हो, या 100, कुछ नहीं होने वाला है उससे। लर्निंग ही आपके सक्सेस की गारंटी होती है। चलो नेक्स्ट। ओके, सो वन कैन लिव कंफर्टेबली विदाउट पासिंग JEE। ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। एट माई प्लेस एट पटना साइंस कॉलेज देयर वाज अ बिग एनवायरनमेंट फॉर गोइंग फॉर JEE। आई एम टॉकिंग ऑफ लेट 1960s। ओके, लेट 1960s, 67, 68 की बात कर रहा हूं, 1967, 68 की बात कर रहा हूं। From that particular one single college, people used to say, maybe exaggeration, but they used to say that from a single institution, Patna Science College sends the maximum number of IITians in any year. So सबसे ज्यादा कहां से, एक इंस्टीट्यूशन से आने वाले स्टूडेंट्स को आप देखोगे तो पटना साइंस कॉलेज विल सेंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू IIT सिस्टम। दैट वाज इन एयर। सही था कि गलत था पता नहीं। कहने का मतलब देयर वाज अ ह्यूज एनवायरनमेंट, एवरीवन वाज ट्राइंग टू गो इनटू JEE। बट देन आई एक्सपेरिमेंटेड, कैन आई लिव विदाउट गोइंग टू JEE? I did not fill the form of JEE. I straight away went for bachelor's program, BSc program at Patna Science College itself. I did my 11-12 from there, and then in the same college I went for my BSc program, BSc Physics Honors program. Okay, so that was another experiment, and yes, the answer to this ये एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिला है, yes, I can live comfortably without passing JEE examination. चलो नेक्स्ट। ओके, +2 कर दिया, ये मेरे कॉलेज का फोटो है। हाँ चलो आगे नेक्स्ट। ओके, फिर ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही था कि गो फॉर ए यूजफुल कैरियर। ओके, मैं मास्टर किया हूँ, 2 ईयर MSc मैंने किया है IIT कानपुर से, और उसके बाद वहीं से PhD किया, जैसा अभी बताया डॉक्टर साहब ने। और उसमें भी मैंने वहाँ पे, जहाँ मैं क्लास 6, 7, 8 के अंदर में फेल किया करता था अपने स्कूल एग्जामिनेशंस में, कई सब्जेक्ट में तो फेल करता ही था, 2-3 सब्जेक्टों में। शुरू में 8-10 में करता था, फिर बाद में संख्या 5 पे आई, 4 पे आई, फिर अंत में 2-3 पर आई, और उसके बाद जा करके सभी सब्जेक्ट में पास होना शुरू किया, बहुत लेट। ओके,
और लेकिन यहाँ तक आते आते, एमएससी तक आते आते मैंने 9.9 के ग्रेड पॉइंट के साथ में अपनी एमएससी के अंदर में टॉप किया आईआईटी कानपुर में। पीएचडी के जितने कोर्सेज होते हैं, हर कोर्स के अंदर में अपने को ए ग्रेड मिला, 10 पॉइंट्स मिला, कोई झंझट नहीं हुआ, पीएचडी आराम से भी हो गई। Then I decided to go for a faculty position at Patna Science College. This was a big experiment. क्योंकि मेरे को सबने बोला, all my professors at IIT Kanpur, all my well-wishers, all my friends, इतना अच्छा तुम्हारा करियर चल रहा है, you should not go for a small town like Patna. क्या करोगे पटना में जाके, क्या करियर होगा तुम्हारा? You should go for some national institute. आप IIS से जाने का बात करो, आप IIT जाने, आईसेर तो था नहीं उस समय में, आप IIT जाने का बात करो। What पटना? बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि आप अपना करियर चौपट कर रहे हो, आप बस क्लासरूम में टीचिंग करोगे और कुछ नहीं करोगे। But I took that also as a useful career. Why useful career? Because आईआईटी सिस्टम में या बड़े इंस्टीट्यूट में जो फैकल्टी का रिक्रूटमेंट होता है वो बहुत ठोक बजा करके होता है, ऐसे नहीं होता। एंड whoever is selected is a great researcher, a great scientist और a great engineer. उसी का सिलेक्शन होता है आईआईटी सिस्टम के अंदर में, ऐसे वैसे का नहीं होता है। तो मैंने ये एनालाइज किया कि if I do not join this system as faculty, then someone else will join मेरी जगह पे, और वो someone else जो आएगा उसको तो इतना ठोक ठाक करके जांच पड़ताल करके लाया जाएगा कि कोई बहुत अच्छा आदमी ही आएगा। तो मेरा क्या रोल रहा, मैं रहूं या मैं रहूं, आईआईटी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। आईआईटी will always get a good faculty, maybe much better than me. बट पटना जहां कोई नहीं जाना चाहता, जिसको भी मौका मिल जाए वो बड़े इंस्टीट्यूट में जाना चाहता है, तो पटना में कौन जाएगा फिर, ऐसे छोटे कॉलेजेस में कौन जाएगा फिर कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट रहेगा, वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या होगा। इफ आई गो देयर, आई एम कैपेबल ऑफ टीचिंग एट आईआईटीज, इफ आई गो देयर एट पटना साइंस कॉलेज एंड आई इंटरेक्ट विथ स्टूडेंट्स देयर विल बी ए डिफरेंस, एक फर्क पैदा होगा मेरे जाने से, तब मेरा लाइफ यूजफुल बनेगा। मेरे जिंदगी से अगर किसी को फर्क पड़ता है, दुनिया को फर्क पड़ता है, मेरी जिंदगी से अगर दुनिया को फर्क पड़ता है और सही दिशा में फर्क पड़ता है तो मेरा लाइफ यूजफुल है, और नहीं पड़ता है तो मेरा लाइफ बेकार है। तो मैंने ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया कि हम जाते हैं पटना, फिर देखेंगे ना, जो होगा सो देखेंगे। और जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट टाइम वी डू नॉट नो द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रिमेंबर, तभी उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट हूँ, पीएचडी में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं मैंने, तो वो कल्चर है मेरे पास। तो रिजल्ट पता नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा कहीं गड़बड़ न हो जाए। ये एक्सपेरिमेंटलिस्ट का कैरेक्टर है ही नहीं, वो तो सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है तो उसको रिजल्ट तो पता होता ही नहीं है। तो हमने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि चलो जो होगा देखेंगे, करो तो एक्सपेरिमेंट जरा, वहां पर जाकर के अपनी जिंदगी को यूजफुल तो बनाओ। तो आई वेंट देयर, और किस्मत की बात देखिए, अगर मैं वहां नहीं गया होता, पटना में नहीं गया होता, और पटना साइंस कॉलेज में मुझे +2 पढ़ाने के लिए नहीं कहा गया होता, और मैं कहीं आईआईटी और ऐसी जगह के ऊपर हमने ज्वाइन कर लिया होता, तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नहीं लिखी जाती। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स नहीं लिखी जाती। So my experiment was really successful and it gave really nice results. वहीं से concepts of physics लिखी गई है। एक तो IIT सिस्टम में जो फैकल्टी मेंबर्स यहाँ बैठे हुए हैं, हंसते होंगे, लेकिन वो 15 घंटे काम करते हैं रोज। 13-14 घंटे तो करना ही पड़ता है उनको। 10 PhD स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी उनके सिर के ऊपर रहती है।
वो इतने सारे, उनको अपनी इतनी बड़ी लैब चलानी है, उसके लिए फंड जनरेट करना है और ये करना है, वो रिसर्च पेपर लिखना है, वो रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना है और पढ़ाना भी है जाकर के। 15-15 घंटे, 14-14 घंटे, 13-13 घंटे काम करते हैं ये लोग। ऑफिस आवर्स तो बहुत थोड़ा ही सा होता है। एक तो ऑफिस आवर होता ही नहीं, क्योंकि इनके ऑफिस की चाबी इन्हीं के पास होती है और इनको कहीं दस्तखत नहीं करना पड़ता। हम इतने बजे आए, इतने बजे गए, बायोमेट्रिक, ये भी इनको नहीं करना पड़ता है। और उसका खामियाजा है, न इनके आने का कोई टाइम है, न इनके जाने का कोई टाइम है। और चले भी गए तो घर में जाकर के अगले दिन का लेक्चर ही बना रहे होंगे लैपटॉप खोल करके। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कब लिखते भैया? जब 15-15 घंटे आईआईटी का काम करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कब लिखेंगे? और 12वीं वालों से इंटरेक्शन भी नहीं है, उनको तो पढ़ा भी नहीं रहे, तो क्यों लिखेंगे? फिर हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की किताब क्यों नहीं लिखेंगे? बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर हमें फिजिक्स पढ़ाना है तो उसके हिसाब से हम लिखते। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स कतई नहीं लिखी जाती अगर हमने ये एक्सपेरिमेंट ना किया होता पटना जाने का। ओके, चलो नेक्स्ट। गुड, अगला। ओके, गेट गुड, अगला। नाउ ये है गोइंग बैक टू स्कूल सिस्टम। आगे बढ़ो। यस, ये जब मैंने आईआईटी ज्वाइन किया, ये उसके बाद की कहानी है। ये सब होता चला गया, हमने कोई प्लान करके एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा नहीं किया, ये सब होता चला गया। अपना जो संस्कार था, अपना जो थॉट प्रोसेस था, और जो हमने पहले 10 साल के अंदर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना लिया था अपने मन के अंदर में, पहले फर्स्ट 10 ईयर्स के अंदर में, 0 to 10 ईयर्स के एज के अंदर में, उसका ये सब नेचुरल कंसिक्वेंसेस आते चला गया। इसीलिए मैं इसको अनइंटेंशनल एक्सपेरिमेंट्स कहता हूँ। ऑलराइट, तो ये करने के बाद आईआईटी में फैकल्टी पोजीशन जब मैंने 15 इयर्स के बाद 1994 में लिया, बीटेक को पढ़ाना शुरू किया, तो आंखें खुली कि ये जेई पास करने वालों को एडवांस पास करके जो लोग जाते हैं आईआईटी में, जिनका नाम वाम निकल जाता है, उनको जो इतनी माला वाला पिन्हाई जाती है, मेडल वेडल दिया जाता है, कभी कभी सड़क के किनारे होर्डिंग्स में उनकी फोटो भी चिपकी रहती है, रिश्तेदार लोग बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। लेकिन आईआईटी में आके, सर यहाँ का मुझे पता नहीं है, आप बता सकते हैं, जो लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं, जितने बच्चे आते हैं उसमें से कितने प्रतिशत को फेल करते हैं? कोई डेटा अगर मतलब कॉन्फिडेंशियल नहीं हो तो बताइएगा, अगर कॉन्फिडेंशियल हो तो मत बताइएगा, पब्लिक नहीं करने का हो तो मत बताइए। लेकिन मैं तो आईआईटी सिस्टम के बाहर आ चुका हूं, तो मैं तो बता ही सकता हूं। At IIT Kanpur, we used to end up failing almost 25% of the students in the first examination. एडमिशन के 2 महीने के बाद जो पहला इम्तिहान होता है और फिर दूसरा इम्तिहान होता है, सेमेस्टर एंड होता है, तो सेमेस्टर जब एंड होता है, दोनों इम्तिहान हो गए, बीच में कुछ 10-10 नंबर वाले बीच के छोटे इम्तिहान भी होते रहते हैं, वो सब मिला के फाइनली रिजल्ट बनाया जाता है। तो रिजल्ट के समय में हमें 25%, लगभग 20 से 25% विद्यार्थियों को फेल करना पड़ता था। और करना पड़ता था इसलिए कह रहे हैं, हमें खुशी नहीं होती है किसी को फेल करने की, क्योंकि एज टीचर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। उन्हीं के कारण से तो हम टीचर हैं ना। हम अगर टीचर हैं, हम अगर प्रोफेसर हैं, तो हम अपने स्टूडेंट्स के कारण से प्रोफेसर हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को दुखी नहीं देखना चाहते, लेकिन हमें करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि हमारे पास में हथियार था फेल करने का और नहीं फेल करने का। आईआईटी सिस्टम जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बता दूं, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ सर। अब तो कोई मेरे ऊपर कोई प्रतिबंध है नहीं। आईआईटी सिस्टम में कितने नंबर लाने से पास करेंगे ये पहले से बताया ही नहीं जाता है।
इम्तिहान लेने के पहले कोई पूछे कि सर कितने नंबर लाऊंगा तो पास कर जाऊंगा, या कितने नंबर लाऊंगा तो ए ग्रेड आ जाएगा, तो प्रोफेसर कहेंगे भैया जब मुझे ही नहीं मालूम है तो तुम्हें क्या बताऊं। तो ये पास मार्क कब डिसाइड होता है कि कितना पास मार्क करके इससे नीचे वालों को फेल करेंगे, इसके ऊपर वालों को फेल करेंगे, ये कब डिसाइड होता है? जब इम्तिहान खत्म हो जाता है, कापियां जच जाती हैं, नंबर टेबुलेट हो जाते हैं और एक्सेल के ऊपर बढ़िया सा ग्राफ बनाया जाता है। 17 नंबर वाले इतने विद्यार्थी है, 18 नंबर वाले उतने हैं, 25 नंबर वाले उतने हैं, 60 वाले उतने हैं, 70 वाले उतने, सुंदर सा ग्राफ बनाते हैं। फिर सोचते कहां पे लाइन डाले, उस लाइन के नीचे वालों को फेल करेंगे, उसके ऊपर वालों को पास करेंगे। तो आपको बताओ, ऑन द एवरेज ये जो लाइन डालने की बात होती थी, वो पास मार्क हमें कभी 32 नंबर रखना पड़ता था, कभी 25 रखते थे, कभी 27 रखते थे, कभी 30 रखते थे, कभी 34 रख दिया तो अच्छी बात हो गई, 40 तो कभी गया ही नहीं। कितने में 200 में 200 में 35 नंबर का पास मार्क रख रहे हैं तो 100 लोगों को फेल करना पड़ रहा है। 400 का टोटल इंटेक, जब मैंने रिटायर किया था उस समय 400 का टोटल इंटेक था और हमें करीब करीब 100 बच्चे हमेशा फेल करने पड़ते थे हर सेमेस्टर में। जब भी नया बैच आए तो पहले सेमेस्टर का रिजल्ट देखोगे और दूसरे का भी देखोगे, करीब 100 बच्चे फेल कर रहे 400 के अंदर में, और पास मार्क कितना रख रहे हैं? 30, 32, 34, 200 के अंदर में। अब क्या करें भैया, आईआईटी है, 0 पर तो नहीं रखेंगे ना पास मार्क को खिसका करके, 0 पर तो नहीं रख देंगे ना कि जो भी आ जाए, जिसका भी एडमिशन हो गया जेईई से सबके सब पास कर गए, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। वहां से मुझे समझ आया कि हमारे स्कूल एजुकेशन के सिस्टम में ये 90, 90, 95 नंबर लाने वाले, 97 और 98 लाने वाले बोर्ड के एग्जामिनेशन के अंदर में, और जेईई के अंदर में भी जो भी पास मार्क है वो भी हालांकि कम ही होता है, वो भी कम ही होता है। हम अभी डेटा देख रहे थे 2 साल पुराना, आईआईटी दिल्ली ने कंपाइल किया है, जनरल कैटेगरी में 30.4% पे ओवरऑल से पूरे इसका वो पास मार्क आया है कि उसके नीचे वाले एडवांस में नहीं क्वालिफाई किए, उसके ऊपर वाले कर गए, परसेंट में है वो डेटा। तो 100 में से 30 नंबर अगर आप ले आए हो तो आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया और आपका आईआईटी में एडमिशन हो जाएगा जनरल कैटेगरी में। और एक सब्जेक्ट वाइज भी कट ऑफ होता है, वो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ तो और 10-12 नंबर का है। मैथमेटिक्स के 100 में 10 भी नंबर ले आओगे, लेकिन केमिस्ट्री अच्छा कर गए, थोड़ा ज्यादा नंबर आ गया और वो 30.4 वाला क्रॉस हो गया तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। आप 10 ही नंबर, 90 नंबर गलत किया है, फिर भी आपको इतनी सारी बधाइयां मिल रही हैं, इतनी सारी मिठाइयां मिल रही हैं, इतने सारे फूलों के हार मिल रहे हैं। जरा सीबीएसई में 10 नंबर लाके तो दिखा दो, क्या हालत होती है, क्या हालत होती है, कितने जूते पड़ते हैं फिर। नहीं भैया, आईआईटी का रुतबा है। तो यहां से मैंने वापस एक प्रयोग किया कि नहीं, हमें स्कूल सिस्टम में जाना है। मैं आईआईटी में आ गया हूं, आईआईटी में फैकल्टी हूं मैं, लेकिन मुझे वापस स्कूल के टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करना है, उसको समझना है कहां गड़बड़ है, कहां गड़बड़ है। वो 11वीं 12वीं पास करके जो बच्चे मेरे पास बीटेक फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं, कहां पे गड़बड़ हो रही है, उनकी ट्रेनिंग में क्या हो रहा है, स्कूल के सिस्टम में क्या हो रहा है। तो फिर से वहां रहते हुए हमने वापस वहां पे गया। चलो नेक्स्ट। अरे सो नहीं जाना भैया, बढ़ा दो, हैंग कर गया क्या कंप्यूटर? ओके गुड। तो फिर हमने वो जो 600 एक्सपेरिमेंट की बात कह रहे थे, हमने बहुत सारे छोटे छोटे, पहले तो पूरा जो एक्सपेरिमेंट किया और डेटा एनालाइज किया तो हमें ये समझ में आया कि हमारे टीचर्स को लर्निंग का जॉय नहीं मिल रहा है। उन्होंने जब भी अपना मास्टर्स किया होगा, अपना बैचलर्स किया होगा, अपनी स्कूलिंग की होगी, उस समय उनको लर्निंग का जॉय नहीं मिला।
और इसलिए वो लर्निंग का जॉय बच्चों में नहीं दे पा रहे हैं। और जॉय अगर नहीं मिल रहा है तो आप लर्निंग भी नहीं करोगे। जब तक आपको खुशी नहीं मिलती है, अरे वाह आज ये सीख गए, ये अगर नहीं मिलती है ना, तो स्ट्रेस में रह करके लर्निंग कभी नहीं होती है। मेरा इतना वर्कशीट का प्रॉब्लम नहीं बना, इतना होमवर्क था उसमें से इतना ही बना, ये नहीं हुआ, ये सवाल को लेके हम 1 घंटे से झींक रहे हैं। झींकने से काम नहीं होता है। स्ट्रेस के अंदर में लर्निंग नहीं होती है। हमारे टीचर्स को भी अपने एकेडमिक करियर में ये जॉय ऑफ लर्निंग नहीं मिला, ये हमें समझ में आया। और वो जॉय ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी लर्निंग नहीं हो रही है। लर्निंग नहीं हो रही है, एग्जामिनेशन केवल पास कर रहे हैं, और इसलिए फिर आईआईटी में आकर के उनको प्रॉब्लम्स इतनी सारी हो रही हैं। तो ये जब डेटा एनालिसिस हमारे हुआ, तब फिर हमने इस तरह के काम शुरू किए कि टीचर्स के साथ में खूब जॉयफुल फिजिक्स हम कर रहे हैं अब। ओके, वो काम हमने धंधा शुरू किया, वो एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स बनाए और सबको खूब मस्ती के साथ में उसका फिजिक्स भी समझाया और ये सब भी कराए। तो ये सब चला। चलो नेक्स्ट। ओके, अब आया ये इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट्स, जो कि ये तो होती गई परिस्थितियां और हम करते चले गए। उसके बाद मेरा हो गया रिटायरमेंट, तो ऑफिशियली अब मैं किसी को नहीं पढ़ाने के काबिल बचा। तो अब खुद को सोचना पड़ा कि अब मैं क्या करूं। पहले तो जैसे जैसे सिचुएशन मेरे को दिखती गई वैसे वैसे मैं करता गया, सिचुएशन ड्रिवन था वो। अब तो कोई सिचुएशन नहीं है, अब तो ब्लैंक है। तो फिर हमें अपना खुद से सारा प्लानिंग खुद से ही करना पड़ा। तो इसलिए मैं इसको इंटेंशनल एक्सपेरिमेंट कहता हूं। ऑलराइट, ये पार्ट 2 है मेरा। आइए, राइट, तो हम वापस स्कूल कॉलेज के सिस्टम में जा करके बच्चों के साथ में, टीचर्स के साथ में हमने ये जॉयफुल लर्निंग का अभियान छेड़ा। हमने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स जनरेट किए कि लोग करें और लोगों को मजा आए और लोग करें। आप लोग करोगे क्या अभी एक एक्सपेरिमेंट मेरे साथ? हम कराते हैं, आप बैठे रहो अपनी जगह पे। आपने सब लोग अपना दोनों हाथ ऐसे आगे करो, एक 4 फिंगर जो है वो बाकी को समेट लो, केवल ये वाली उंगली रखो, एक दूसरे के तरफ मोड़ लो उंगली, और दोनों को एक दूसरे से सटा लो और आंख के लेवल पे ले आओ या थोड़ा ऊपर। ओके, अब आप मुझे मत देखना, आए तो आप मुझे देखने के लिए, लेकिन मुझे देखना नहीं, आपको इस स्क्रीन को देखना है। और आपका जो हाथ उंगली है वो आपके बीच में आना चाहिए, लाइन ऑफ साइट के बीच में आना चाहिए। लेकिन उंगली पे फोकस नहीं करना, आंख उंगली देखने की कोशिश मत करना, बोर्ड देखने की कोशिश करना। कुछ अलग दिख रहा है क्या? 3 उंगली, किसने बोला 3 उंगली? हाँ, दिख रही है क्या 3 उंगली? 2 उंगलियां तो आपकी है, तीसरी बगल वाले के बीच में घुस गई है। दिख रही है क्या? अब जो आपकी दोनों उंगलियां सटी हुई थी उनको वैसे ही आप देखेंगे, उसी तरह बोर्ड को देखेंगे और उसको हाथ को बीच में रखेंगे, और जो सटी हुई तो 1-2 मिलीमीटर केवल हटा दीजिए, एक दूसरे से सेपरेट कर दीजिए। उतना ज्यादा नहीं, उतना कम, जस्ट 1-2 मिलीमीटर्स। बीच वाली उंगली का क्या हुआ? फ्लोट हो रही है, न इधर से जुड़ी है न उधर से जुड़ी है, लटक गई बीच में। अब इसकी ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद इसकी अगर हम फिजिक्स करना शुरू करेंगे, आंखों में कहाँ लेंस होता है उसको हम फोकस करते हैं तो क्या होता है, उसका कर्वेचर क्या होता है, वो एक्स्ट्रा इमेज क्यों दिख रही है, हम उंगली नहीं देखना चाहते फिर भी मुझे उंगली दिख रही है, वो एक्स्ट्रा क्यों दिख रही है, ये सारी फिजिक्स अब हम कर सकते हैं। ये है जॉयफुल लर्निंग। ओके, ये है जॉय। मजा तो आ गया भैया एक बार। और जब मजा आ गया तो एक क्यूरियोसिटी हो गई कि ऐसे कैसे हो गया, ये तीसरी उंगली कहां से आ गई, क्यों दिख रही है मुझे। अब एक मोटिवेशन मिल रहा है पढ़ने के लिए कि मेरी आंख का कर्वेचर कैसा होता है और लेंस का कर्वेचर सिलियरी मसल्स कैसे बदलती हैं, वो क्यों हमें जानना चाहिए। इसलिए हमें जानना चाहिए कि ये तीसरी उंगली कहां से आ गई, इसको जानना है। तो दिस इज द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वी आर डूइंग। हम उसको प्लान करते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं, जॉयफुल लर्निंग कराने का कोशिश करते हैं। हाँ चलो अगला। 2 प्लेटफॉर्म्स में यूज करता हूं,
एक है शिक्षा सोपान, विच इज एन NGO started by some 4th year BTech students in the year 2001. अब उसके 24 साल पूरे हो गए हैं और 25वां साल जो है वो चल रहा है, रजत जयंती वर्ष है इसका। बहुत छोटा सा ग्रुप है ये, बहुत छोटा सा। IIT कानपुर के 4th ईयर के बीटेक के स्टूडेंट्स ने 2001 में शुरू किया था। वो तो चले गए, 4th ईयर के थे ना, और हमारे माथे मड़ गए, चलाओ। और हम लोगों ने भी उसको कहा कि हाँ अच्छी चीज़ है, इसको चलाएंगे। तो हम लोग 24 साल से इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ से शिक्षा सोपान का अपना एक बड़ा सा, नॉट बहुत बड़ा सा, एक छोटा सा ही कहो, 2 एकड़ टाइप का, यहाँ का कितना यहाँ का कितना कैंपस एरिया है? 535 एकड़ है। तो हम तो 2 एकड़ वाले हैं हम 2 एकड़ वाले हैं। उसी के अंदर में अपनी लैब्स वगैरह हमने सेटअप किए हैं। वहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, वहाँ पे टीचर्स आते हैं, वहाँ पे हम कैंप्स करते हैं, इस तरह का जॉयफुल लर्निंग कराते हैं। तो शिक्षा सोपान के उस पर होता है। ये उसकी मेरी बाउंड्री वॉल है, उधर लोहे का दरवाजा आपको दिख रहा होगा, ग्रिल वाला, उसके बगल की बाउंड्री वॉल है। इसी के ऊपर हमारा ये नेम प्लेट इसी में लगा हुआ है। और हमारा 2-3 शब्द हैं, शिक्षा, संस्कार और स्वावलंबन। और नीचे का हमारा ध्येय वाक्य है, अंधकार को क्यों धिक्कारें। आगे हाँ, अच्छा है, एक जलाएं। तो इसी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, इसी सेंटेंस से हम लोग प्रेरणा लेते हैं और काम करते हैं। और IAPT इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, इसको 1984 में ये शुरू हुआ था, कानपुर से ही शुरू हुआ था। और अभी भारतवर्ष का फिजिक्स टीचर्स का सबसे बड़ा एसोसिएशन ये है। और केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों को भी अगर आप उससे भी कंपेयर करोगे तो उसमें भी सबसे बड़ा एसोसिएशन है। इसके 10,000 से ज़्यादा लाइफ मेंबर्स हैं। इसको भी, इस प्लेटफॉर्म को भी हम यूज़ करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट। ओके, अब पहला तो यही है कि लर्निंग फिजिक्स विथ AI। और AI का A जो है वो हिंदी का है, और I जो है सो अंग्रेजी का है। A is for अवलोकन, that is ऑब्जर्व करना, and other thing is interpretation। तो देखो क्या हो रहा है, देखो, क्योंकि मैंने कहा ना, इवेंट्स को देख करके समझना ये मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ है, हर व्यक्ति की नेचुरल स्ट्रेंथ है। तो हम उस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करते हैं ताकि उसको लोग देखें, अवलोकन करें उसका, और फिर उसको इंटरप्रेट करें। तो इस तरीके से करके अपना फिजिक्स सीखना, ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट चला। ये बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट चला। आपको दिख रहा है क्या वो जो शीशे के बर्तन के अंदर में हरे रंग की लेजर चल रही है पानी के अंदर में? क्या स्ट्रेट लाइन में चल रही है क्या वो लाइट? कैसा दिख रहा है आपको? पता नहीं, इतनी दूर से स्ट्रेट लाइन में चल रही है कि कुछ ऐसा पैराबोला जैसा बना के चल रही है ना? तो अब ये है, हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। लोगों को बताया नहीं कि हमने क्या किया, लेकिन हमने एक सिचुएशन क्रिएट किया। हमारे बर्तन के अंदर में कुछ पानी है, पानी जैसा कुछ है और हमने एक लेजर से उसमें लाइट डाली। अब वो लेजर सीधी रेखा में नहीं चल रही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये यहां नहीं हो रहा है। ओके, तो एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेकर के आओ। हमने सीखा इसको, एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेकर। लोगों को बहुत सारी चीजें पता है पहले से, लेकिन वो उसके अनुसार चीजें नहीं हो रही है, कुछ और हो रहा है। ऐसा ही होता है ना, जो मैजिशियन क्या करता है, आपको सब पता है कि ऐसे होना चाहिए, वैसा, उसके अलावा कुछ हो रहा है। एंड देन यू आर सरप्राइज्ड कि ऐसे कैसे हो सकता है। एंड देन यू आर वेरी क्यूरियस कि हमें पता चले कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। म्यूजिशियन कभी बताएगा नहीं आपको कि वो कैसे हो गया, उसकी दुकान नहीं चलेगी अगर बता देगा तो। लेकिन हम बताते हैं, हम पहले सरप्राइज करते हैं, पहले हम उनको सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि सोचो 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 सोचो। उसके बाद कुछ लोग सोच लेते हैं, निकाल लेते हैं, कुछ लोग नहीं निकालते हैं। फिर हम डिटेल में उसकी सारी कहानी बता देते हैं कि हाँ भैया हमने ये किया, वो किया, वो किया। तो इस तरीके का कार्यक्रम जो है हमारा, आप उसको ऑब्जर्व करें और उसके बाद फिर उसको इंटरप्रेट करें। सो इट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट, यस, वंस अगेन ऑल पीपल आर वेरी हैप्पी डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। आगे अगला। ओके, ये कश्मीर का मामला है। हम लोग शिक्षा सोपान से अपनी टीम लेकर के कश्मीर गए थे, वहाँ रहे बहुत दिनों तक। और मुझे तो आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन मुझे ढूंढ जरूर पा रहे होंगे। ढूंढ पा रहे हैं क्या? मैं हूं क्या इस पिक्चर में? दिख रहे ना? बाल बाल मेरे लहरा रहे हैं ना थोड़े? हाँ,
तो हम कश्मीर में इस तरह हम घूमते रहते हैं, हम जहाँ कहीं भी मौका मिलता है हम स्टूडेंट्स के बीच जाते हैं, हम टीचर्स के बीच जाते हैं और उनके साथ ये जॉयफुल लर्निंग ऑफ फिजिक्स, ये हमारा एक्सपेरिमेंट अनवरत चलता जा रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट, मजलिस, ये एक अलग कार्यक्रम हम लोग ने शुरू किया है। मजलिस, मजलिस का मतलब जानते हैं ना, वो जहाँ शायर वायर लोग बैठ करके और एक चौकी के ऊपर गद्दा वद्दा बिछा करके चादर वादर सफेद रंग की डाल करके मुशायरा करते हैं, शेर सुनाते हैं, शायरी सुनाते हैं, उसको कहते हैं मजलिस। मजलिस लगी है तो हम फिजिक्स मजलिस नाम का कार्यक्रम चलाते हैं, जिसके अंदर में कि जिस शहर में कार्यक्रम ये है, ये आउट स्टेशन एक्टिविटी है हमारे शिक्षा सोपान की। हम दिल्ली में अभी नोएडा में कर रहे हैं और फिर कुछ एक आध जगह और करने का भी प्लान है। तो हम वहाँ पर जा करके और टीचर्स का एक जगह इकट्ठा करके महीने में एक दफ़ा उनसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं वहाँ पे। वो लंबा एक्सपेरिमेंट होता है, वो 2 घंटे 3 घंटे वाला एक्सपेरिमेंट, 2 मिनट वाला नहीं होता है, वो करते हैं संडे के दिन। और एक महीने में एक बार हम लोग ऑनलाइन मीटिंग करते हैं उनका विज़न ब्रॉड करने के लिए। तो उसमें हम रिसर्चर जो हैं हमारे, या कोई बड़े अच्छे टीचर हैं या इस प्रकार के हैं, थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेशन है, तो उनका ऑनलाइन फिर हम वेबिनार कराते हैं। अपने राजेश जी ने भी उसका ऑनलाइन दिया हुआ है इस मजलिस के अंदर में, और फिर से शायद आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बहुत दिन हो गए उसको। तो ये चलता है। हाँ चलो नेक्स्ट, ये अन्वेषिका है। मैं इसकी थोड़ी सी बात करूंगा, मेरे ख्याल से 15 मिनट और लगेंगे मुझे। तो ये एक लेबोरेटरी है अन्वेषिका, ये IAPT का एक पार्ट है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स का, और इट इज ए लेबोरेटरी, एक ओपन लेबोरेटरी। हाँ एक बार और दबाना तो देखें क्या आता है। हाँ ओके, ये ओपन लैब है और PLF इज फिजिक्स लविंग पर्सन्स, जो भी लोग फिजिक्स को प्यार करते हैं वो है PLF फेलोज, हमारे जो मित्र है। तो ओपन लैब का मतलब है कि ओपन का मतलब ये नहीं कि ताला नहीं लगता है उसके अंदर में, ताले लगते हैं उसके अंदर में, लेकिन ओपन का मतलब है कि कोई स्ट्रक्चर्ड सिलेबस नहीं है। इट इज सपोज टू बी वन टीचर वन लैब, वो टीचर को जो मर्जी आए उस लैब के अंदर में बनाए, डेवलप करे, दूसरों को लाके उसमें से सिखाए, नहीं सिखाए। जो दूसरे आते हैं उनको भी स्वतंत्रता रहती है कि कुछ अपना आइडिया आजमाना है तो आजमा लो। तो ऐसे करके अन्वेषिका है, और हमारी इस समय में टोटल 31 सिटीज के अंदर में ये अन्वेषिका सेंटर चल रहे हैं। ओके हाँ चलो नेक्स्ट। और अन्वेषिका में हम लोग बस इसी तरह के उछल कूद वाले धंधे करते रहते हैं, जिसमें लोग हंसी मजाक करें, लर्न करें और चीजें सीखें। और अलग अलग अन्वेषिका अलग अलग अपना प्रोग्राम्स बनाती रहती हैं। कुछ सेंट्रल प्रोग्राम्स हैं जो सभी करते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये सब चल रहा है, ये सब अन्वेषिका। ये हमारी आंध्र प्रदेश की अन्वेषिका है, विजयनगरम शहर की। हाँ हम बहुत सारे थे, तो हमने वो एयर ट्रैवल के दौरान जो जो फोटो हमें दिखाई पड़ी हम पट लगाते गए हैं। हाँ नेक्स्ट, इंदौर में भी अपनी एक अन्वेषिका है। यहाँ पर शिशु कुंज नाम का स्कूल है, उस स्कूल के अंदर में अरविंद पाठक नाम के शिक्षक हैं, उनके नेतृत्व में एक अन्वेषिका 31 में से एक सेंटर अपने इंदौर का भी है। हाँ चलो आगे। अब इसके अंदर में हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। वन इज दिस जॉयफुल एग्जामिनेशन, ये भी अन्वेषिका के प्लेटफॉर्म पर है। नेशनल अन्वेषिका एक्सपेरिमेंटल स्किल टेस्ट कहते हैं इसको। एग्जामिनेशन पर हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है। एग्जामिनेशन सबसे डरावनी चीज होती है ना। बाकी टाइम में तो आप कुछ भी कर लो, बगल वाले से भी बात कर लो, किसी की कुछ कपड़े वपड़े खींच लो, थोड़ा इधर उधर कर लो, बाल बाल नोच लो, कोई बात नहीं है, चलता है। लेकिन इम्तिहान के समय कुछ नहीं कर सकते हो। इम्तिहान के समय तो परीक्षा नहीं दोगे ढंग से, पूरे मन लगा करके, तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो वो भी जॉयफुल हो, वो भी डरावना नहीं हो, उसमें भी स्ट्रेस नहीं हो, उसमें से भी लर्निंग हो। इसके लिए हमने एक खास तरीका, हम छोटे स्तर पर है, इसको स्केल अप नहीं कर सकते इस मॉडल को, लेकिन हमने छोटे के लिए एक मॉडल बनाया, कोई बड़े के लिए मॉडल बना दो इसी प्रिंसिपल्स के ऊपर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारा उद्देश्य है कि इट शुड बी एंजॉयबल एंड एडुकेटिव। चलो अगला। तो इस नेस्ट के कई सारे राउंड्स हैं। पहला राउंड स्क्रीनिंग राउंड कहलाता है, वीडियो बेस्ड है, 1 मिनट से छोटे वीडियो होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर अगला ये प्रीलिम्स राउंड कहलाता है, ये इसमें 3 एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम थोड़ा आगे बताएंगे। चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट।
ओके नेक्स्ट। हाँ, ये देखो, ये एक जो आप ये लिंक देख रहे हैं, अगर ये इसको लिंक को हम प्ले कर दें अभी, तो उसमें क्या होगा कि एक बॉटल होगी किसी के हाथ में, अभी हम उसको प्ले नहीं करेंगे, एक बॉटल होगी हाथ में और दो बॉटल, एक्चुअली दो बॉटल्स हैं। एक बॉटल है जिसका ढक्कन ऐसे ऐसे करके बंद किया जाएगा, ओके। एक बॉटल है जिसका ऐसे ढक्कन लिया जाएगा, ऐसे लेकर के उसको यूं 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 बंद किया जाएगा। और दूसरी बॉटल है जिसका ढक्कन चूड़ी वाला नहीं है। आपने देखा होगा ना, जो शैम्पू वगैरह आते हैं तो पट से ऐसे खोलते हैं, पट से ऐसे बंद कर देते हैं, उसमें चूड़ी नहीं करते हैं, वो ऐसा करके ऐसा खुलता है और फिर ऐसा बंद हो जाता है। तो ये दो बोतलें हैं और दोनों के ढक्कन बंद किए जा रहे हैं अलग अलग। अब उसके ऊपर से देखो एमसीक्यू सवाल है। हाँ, जब कैप स्क्रू हो रहा है तो उस समय की बात है, वर्क डन बाय द एयर इन द बॉटल ऑन द कैप इज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो एयर है वो कैप के ऊपर जीरो कर रही है, टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड का क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे वाले वीडियो के ऊपर सवाल बनाना, फिजिक्स के सवाल बनाना है, लेकिन सिचुएशन क्या है, जो हम घर में करते हैं, रोजाना करते हैं, सुबह से शाम तक करते हैं, नेचुरल लर्निंग। ढक्कन खोल रहे हैं। हमारा एक सवाल था, उसमें एक चिड़िया बैठी थी और वो चिड़िया उड़ी जमीन से और जाके डाली पे बैठ गई, वीडियो खत्म। 1 सेकंड का वीडियो है, लेकिन सवाल उसके ऊपर ऐसा है कि उस पर 2 मिनट लगेंगे उसको सवाल को बनाने के अंदर में। काइनेटिक एनर्जी का क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का क्या हुआ, टोटल एनर्जी का क्या हुआ, ये वो करके उसके अंदर सवाल। तो ऐसा इस तरीके का सवाल। और हमारे इस परिसर में जितने क्लास 9 से 12 के विद्यार्थी बैठे हैं, उनके लिए ये एग्जामिनेशन अब शुरू होने वाला है। 1 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। अगर आप हमारे मेरे चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे, तो आपको वहाँ पे भी एक वीडियो इसका दिखाई पड़ेगा, इसके बारे में डिटेल्स। और शिक्षा सोपान की साइट पर जाएंगे तो भी, और नेक्स्ट लिख करके गूगल सर्च कर देंगे तो भी आपको इसके डिटेल्स मिलेंगे। 9 से 12 तक के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। हाँ, चलो नेक्स्ट। सेकेंड राउंड का एक्सपेरिमेंट सबसे बढ़िया है, आवर एक्सपेरिमेंट योर डिजाइन। ये इसमें हम एक लिख करके भेजते हैं, जो स्क्रीनिंग से हमने करीब 1000 बच्चों को सिलेक्ट किया होता है, उनको हम लिख के भेजते हैं ईमेल के द्वारा। ये एक्सपेरिमेंट करना है, हम बताएंगे ये एक्सपेरिमेंट करना है, कैसे करना है ये आपका हेडेक है, वो हम नहीं बताएंगे। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हम भेजते हैं वो घर में किया जाना है, लैब में नहीं किया जाना है। और घर में जो सामान उपलब्ध है उसी से किया जाना है। कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट आपको खरीद करके नहीं लाना है या लैब से नहीं लाना है। चकला, बेलन, तवा, कढ़ाई, प्लास्टिक का डब्बा जिसमें आप चना दाल रखते हैं, वो सब, बॉटल तरह तरह की, रस्सी, रबर बैंड, टेबल, कुर्सी, घर में जो सामान रहते हैं उन्हीं सामानों से, आपका अपना मोबाइल फोन भी एक सामान ही है, उन्हीं चीजों को इकट्ठा करके डिजाइन करना पहले एक्सपेरिमेंट, कि जो चीज हम मांग रहे हैं वो कैसे मिलेगी। फिर उनको असेंबल करना, फिर उस पर एक्सपेरिमेंट करना, फिर उसमें डेटा लेना, फिर उसका ग्राफ बनाना, उसका टेबल बनाना, उसके बाद उसकी मैथमेटिक्स करना, और जो हम कहते हैं ये निकाल के लाओ भैया, पानी का सरफेस टेंशन चाहिए, वो करना। तो ये हमारा सेकेंड राउंड होता है। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा इसलिए डिटेल्स में बता रहा हूं कि इसमें इम्तिहान के सारे नॉर्म्स जो होते हैं वो हमने तोड़ दिए हैं। आप देखना कैसे। हाँ, नो इन्विजिलेशन। 3 एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, 1 आफ्टर द अदर। एक करोगे तो दूसरा भेजेंगे। 5 दिन का समय देते हैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और कोई नहीं कहता कि अपना कैमरा ऑन रखना, जिस समय आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हम देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। तो नो इन्विजिलेशन। और हम कहते हैं कि जिसको मर्जी आए उसको बुला लो अपने साथ। घर के लोगों को तो बुलाओगे ही, घर का जब डब्बा वब्बा मांगोगे तो मम्मी से को तो लाना ही पड़ेगा ना, तभी तो डब्बे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे कैसे। बाहर से भी बुला लो, दोस्तों को बुला लो, अपने फिजिक्स टीचर को आ जाए तो उनको भी बुला लो, किसी को भी बुला लो, कोई इन्विजिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, आगे बताओ। ओके, तो 5 दिन का समय है। कोई ऐसा नहीं है कि 3 घंटे में कॉपी छीन ली जाएगी और वगैरह वगैरह हो जाएगा, वो भी नॉर्म शैटर्ड है। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड, टीचर, सबको बुला लो, एब्सोल्यूट फ्रीडम टू इनवाइट। और आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब जो हमने लिख के दिया कि ये करना है वो आपने कर दिया।
एकदम बढ़िया कर दिया, एकदम हम खुश हो गए देखकर, अरे वाह क्या नंबर आए। तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैं आपके कितने नंबर दूंगा? 100 में से 70, उससे ज्यादा मैं दूंगा ही नहीं। 70 नंबर में ही करना है मैक्सिमम, सबसे बढ़िया लगा तो 70 भैया, और उसके बाद फिर उससे कम। 30 नंबर क्यों लिखे मैंने, 100 का क्यों लिखा मैंने मैक्सिमम मार्क्स? वो 30 नंबर वो काम करने के लिए है जो मैंने नहीं कहा था उस पेपर के अंदर में। आप वो करके तो उस 30 में से भी फिर और नंबर मिलेंगे। तो जो हमने कहा वो तो आपने किया ही, अब आप उसके बाद सोच रहे हो, सोचने की क्षमता विकसित करनी है, और क्या कर लें इसमें से, उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इंडिपेंडेंटली आप सोच रहे। और बच्चे इतने क्रिएटिव होते हैं, एक बच्चे ने एक खास एक्सपेरिमेंट में इतना काम किया, उसने इतना एक्सप्लोर किया, उसके दाएं बाएं आजू बाजू का, और ये करके वो करके 102 पेजेस का उसने मेरे को रिपोर्ट भेजा, क्लास 11th का स्टूडेंट, एक एक्सपेरिमेंट का रिपोर्ट 102 पेजेस। कौन कहता है कि परीक्षा जो है दुखदाई होती है? लेकिन परीक्षा के जो नॉर्म्स, इतने टाइट नॉर्म्स बने हुए ना, वो दुखदाई होते हैं, और बिना रटे हुए काम नहीं होता है, सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है, तो कुछ मजा नहीं आता है, याद है तो लिखा, नहीं याद है तो, इसलिए वो दुखदाई होता है। ये तो बड़े मजे, परीक्षा तो बड़े मजे की चीज है, हमने तो बड़े मजे मजे लेकर के किए हैं परीक्षाएं। हाँ चलो नेक्स्ट, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, और हमने यहां बोला नहीं, बीएससी और एमएससी के बच्चे भी भाग लेते हैं इस परीक्षा के अंदर में, और सबके लिए एक ही पेपर बनता है। जिस पेपर पे क्लास 9th का बच्चा एग्जाम दे रहा है, स्क्रीनिंग हो या ये सेकंड राउंड हो, उसी पेपर पे एमएससी का बच्चा भी इम्तहान दे रहा है, उसी पे 12वीं का भी दे रहा है, उसी में 10वीं का भी दे रहा है। वो भी परीक्षा के सब कहाँ सिलेबस और क्या, और हमारा पूरा ये 12 साल, 2011 से ये परीक्षा शुरू हुई थी शायद, इतने साल हो गए, हमारे पास बहुत डेटा है, और वो डेटा बताता है कि जो सक्सेस परसेंट जो हम जब स्क्रीन करते हैं, 1000 को लेके जाते हैं, जितने प्रतिशत स्कूल वाले बच्चे जाते हैं, उससे कम प्रतिशत हमारे कॉलेज वाले बच्चे पास करते हैं। और जो स्कूल वाले पास करते हैं उसमें 9, 10th, 11th, 12th का कुछ नहीं है, 9th वाले भी पास करते हैं, 12th वाले भी पास करते हैं। आप देखो स्टैटिस्टिकल एवरेज बिल्कुल बराबर बराबर सा दिखेगा आपको। तो इस तरीके का ये भी नॉर्म शैटर्ड है। चलो नेक्स्ट, ओके, अब जो अगला जो तीसरा चौथा राउंड होता है वो हमारे सोपान आश्रम कानपुर पे हम 40 लोगों को बुलाते हैं, उनका होता है। हाँ आगे बढ़ो। तो ये लोग आते हैं मेरे यहाँ, हम लोग सेटअप तैयार करके रखते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करने के लिए देते हैं, और वो होता है। उसके अंदर में क्या तमाशे हम लोग करते हैं वो आप देखो। आइए नेक्स्ट आइए, अगला। ये ज्यादातर एक्सपेरिमेंट मेरे लैब के बाहर भी होते हैं, ज्यादातर बाहर ही होते हैं, कुछ अंदर होते हैं। सब आप देख रहे हो ना गार्डन पे, वो पेड़ वेड़ हैं और ये है, उसी में रस्सी वस्सी बांध दी है और उसी में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं नेचर के साथ। अगला ये देखो, ऐसे ऐसे ये कपल्ड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है, यहाँ कराते होंगे फर्स्ट ईयर में कपल्ड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट। मेरे यहाँ ऐसे होता है कपल्ड पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट। और हमारे पास गाय भी है, तो गाय का जब छोटा बच्चा होता है नया, जब गाय हमारी बच्चा देती है, वो बच्चा जरा सा बड़ा होता है, इसके साथ बहुत खेलता है, कपल्ड पेंडुलम के साथ बहुत खेलता है। वो आके एक को हिला देता है और फिर दूसरा भी हिलता है और वो मजे से देखता है उसको, वो भी फिजिक्स लर्न कर रहा है। हाँ चलो नेक्स्ट, हाँ आगे। हाँ ओके, हम भी बैठ जाते हैं जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम भी बैठते हैं वहाँ पे। चलो आगे, यस, हाँ ठीक है, और आगे बढ़िए बढ़िए। ओके, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जो हमारे इन्विजिलेटर्स होते हैं इस वाले में, इसके लिए नहीं होते हैं कि बगल वाले का कोई कॉपी नहीं करे, वो नहीं, हम कहते हैं उनको इन्विजिलेटर्स, वो एक्चुअली इवैल्यूएटर्स होते हैं, वही लोग नंबर देते हैं अंत में। तो उनको ये इंस्ट्रक्शन होता है, हाँ आगे वाला था ना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ, उनको ये इंस्ट्रक्शन होता है, एवरी स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द एक्सपेरिमेंट्स, ऑल 3 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली। वो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये इतना नंबर उतना नंबर करते रहेंगे। लेकिन कोई भी विद्यार्थी जो इस राउंड में आ गया है सोपान आश्रम में, 40 बच्चे जो बुलाए गए हैं, 40 को ये 3 एक्सपेरिमेंट करके ही यहां से जाना है और सक्सेसफुली करना है। जिम्मेदारी किसकी? इवैल्यूएटर्स की।
हमारे इवेल्युएटर्स पूरे टाइम वॉच करते हैं, और इसमें भी कोई टाइम का लिमिट ज़्यादा होता नहीं है, किसी को 2 घंटे करना है करो, 3 घंटे करना है करो, 4 घंटे करना है करो, पूरे टाइम वॉच करते हैं। कहीं अगर उनको लग रहा है कि गलत राह पर चल रहा है, इसका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएगा, इससे होगा नहीं, वो जाएंगे उसके पास, को बताएंगे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है, ये करो आप, तब वो आएगा। वो फोकस नहीं हो रहा तो ये करो तब फोकस होगा, ये रीडिंग नहीं आ रही तो ये करो तब आएगी। उसको ट्रेन अप करते हैं और सबसे एक्सपेरिमेंट करवा के तब भेजते हैं उसको। तो मेरे यहाँ जिसको अच्छे नंबर आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड मिले, ढेर सारी स्कॉलरशिप मिली, पैसे मिले, प्राइज मिले, वो भी खुश, और जिसको कुछ नहीं मिला वो भी खुश। पहली बार इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करने को मिले, पहले घर में किया, अब यहाँ पे किया, और सारे टीचर्स इतने प्यार प्यार से समझा करके उसको करा रहे हैं। फिर हम उनके साथ में और भी खेल तमाशे भी करते हैं, खास करके जो लोग फेल करते हैं इसमें। फेल करते हैं मतलब, फेल तो शब्द बहुत ही खराब है, फेल तो कोई नहीं करता है, लेकिन हाँ जो प्राइज में नहीं आते हैं उनके साथ भी हम बहुत सारे खेल। ओके, सो ये हमारा परीक्षा का एक्सपेरिमेंट है। आगे देखो तो कुछ है क्या? हाँ, रिसर्च लैब। हाँ, हमने एक अपने सेंटर के ऊपर एक रिसर्च लैब भी छोटी सी बनाई है, बहुत छोटी सी है, 5 लाख रुपए से भी कम लगे हैं उसके अंदर में। मटेरियल साइंस के कुछ चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पे। तो हमारे यहाँ इंटर्नशिप करने के लिए NIT से कई सारे स्टूडेंट्स हर साल आते हैं, महीने 2 महीने रहते हैं वहाँ पे, और इस रिसर्च लैब के अंदर में काम करते हैं, और वो काम आगे बढ़ाते हैं फिर अपने इंस्टीट्यूट में जा करके। और जगह जगह जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, सेमिनार सिम्पोजियम होते हैं, उसमें हमारे स्टूडेंट्स जो यहाँ काम करते हैं वो लोग अपना प्रेजेंटेशंस देते हैं। और जो यूनिवर्सिटी है हमारे सेंटर से 3 किलोमीटर पर होगी, कानपुर की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो MSc के स्टूडेंट्स होते हैं वो हर साल यहाँ पे 5-6 स्टूडेंट्स आकर के इस लैब के अंदर में अपने डिसर्टेशन का जो प्रोजेक्ट MSc में करते हैं उसका काम यहाँ पे करते हैं, और उसको वो लोग वहाँ पे अपना सबमिट करते हैं। ये कल्चर यहीं से शुरू हुआ है, वरना MSc का डिसर्टेशन कंट्रोल C और कंट्रोल V से ही हुआ करता था। अब ये यहाँ से होता है, कम से कम उन 5 बच्चों के लिए हर साल जो कि इसमें आते हैं। ये भी एक हमारी एक्टिविटी है। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत सक्सेसफुल रहा है हमारा, और ये हमारे दीना चंद्र जी हैं जो कि सबको समझा रहे हैं। ये सारे 5 बच्चे MSc के हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के, और उनके साथ में सब रिसर्च का प्रोजेक्ट। हाँ चलो नेक्स्ट। ओके, इसको हम लोग सुरीला कहते हैं। ओके नेक्स्ट, ठीक है। ये हमारी सुरीला लैब की एक्टिविटीज़ हैं, कुछ आगे। ये सब बच्चे हैं, देखो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने। हाँ ऑलराइट, हो गया क्या? हाँ ठीक है, ये सब बता दिया मैंने। ओके, हाँ बस ये आखिरी है। ये जो JEE है ना, जी, वो जी नहीं है, वो जी का जंजाल है। इस जी के जंजाल से हमें फंसना है, इसमें फंसना नहीं है। और नहीं फंसने का क्या मतलब है? स्ट्रेस नहीं लेना। आप कभी लर्न नहीं करोगे अगर स्ट्रेस लोगे तो। परीक्षा में नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा। इतना मैं तो 10वीं क्लास तक तो इतने अच्छे नंबर आते थे, हमसे सारे सवाल बन जाते थे, और हमें बहुत इंटरेस्ट था फिजिक्स करने में और मैथमेटिक्स करने में। और अब तो कोचिंग जाते 6 महीने हो गए, हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझसे हो ही नहीं रहा है। इतनी सारी मेल मेरे पास में आती है, हम सबको काउंसलिंग करते रहते हैं मेल के ऊपर। ये स्ट्रेस नहीं लेने का है। मुझसे अभी वो पॉडकास्ट किया मैंने 3 दिन पहले एक स्कूल के अंदर में, उनके इसमें, उसमें उन्होंने ये पूछा कि लोग फेल्योर से कैसे अपने को उसमें कैसे अपने को संभाल कर रखें कि फेल्योर से वो बहुत ज़्यादा व्यथित ना हो। और फेल्योर किस बात का? जेई का। जेई में अपियर हो रहे हैं और वो फेल कर जाएंगे या कर गए, उनको कैसे काउंसिल किया जाए। तो मैंने वो बताया कि फेल कौन करता है? फेल कौन करता है? जेई में पास नहीं होने को फेल करना कहते हो, फेल्योर कहते हो? इट्स नॉट ए फेल्योर। 20 लाख लोग अपियर होते, 20,000 पास करते, 19 लाख 80,000 बच्चे जेई का इम्तिहान पास नहीं करते। अगर आप कहो कि वो फेल्योर्स हैं, जिस देश के 20 लाख में से 19 लाख 80,000 बच्चे हर साल फेल कर जाएं, क्या दुनिया में उस देश का डंका बच सकता है? आज दुनिया में अगर भारत की पहचान है,
आज हमारे प्रधानमंत्री जी हर देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार उन्हीं को मिलता रहता है। जहां जाते हैं वहीं पता चलता है कि इस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इनको मिल गया, आज उसको मिल गया, आज वहां वाला मिल गया, आज वहां वाला मिल गया। पुतिन जी से लेकर के और ट्रंप जी तक सब लोग उनके साथ लालायित रहते हैं मिलने के लिए। जिस देश के 20 लाख लोगों में से हर साल 19,80,000 लोग फेल कर जाएं, फेलियर हो, ऐसा देश क्या डंका बजा सकता है अपने दुनिया के अंदर में? व्हाट इज फेलियर? तो फेलियर नाम का कोई चीज नहीं है। वो पास किए तो भी ठीक, नहीं पास किए तो भी ठीक। और हमने तो पहले ही कहा था ना कि हम जेईई का फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर भी हमने अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार ली ना, और गुजार रहा हूं। तो जंजाल में नहीं पड़ना वो अच्छी चीज है। आईआईटीज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आईआईटीज अच्छी चीज तभी है जबकि आप मजे मजे में पढ़ाई करोगे, मजे मजे में इम्तिहान दोगे, यहां आकर भी मजे मजे में इम्तिहान दोगे, तो आपको 100 में 17 नंबर और 18 नंबर के लिए संघर्ष भी नहीं करना पड़ेगा, आप अच्छे नंबर भी लेकर के आओगे। और जब आप स्ट्रेसफुल रहोगे, दिमाग को समोसा खा खा करके दिन गुजारोगे, है और कचौड़ी खा खा करके दिन गुजारोगे। इंदौर खाने पीने के लिए वैसे प्रसिद्ध है, बड़े अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं रोड किनारे में लेकिन आपने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया, आपने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया, आप अच्छी ड्राइंग बनाते थे वो छोड़ दी, रिश्तेदार आते हैं तो आप कमरे में रहते हो, घर में बाहर नहीं निकलते हो, आधा घंटा बर्बाद हो जाएगा। ये सब जो झमेला है ना, ये आप अपने आप को कमजोर कर रहे हो। आप जेईई में पास करने का वो प्रोबेबिलिटी भी घटा रहे हो एक्चुअली, क्योंकि थके हुए माइंड से जब क्वेश्चन पेपर पढ़ोगे जाके वहां पे, और वह नया क्वेश्चन आने ही वाला है। हर साल ये लोग 15-15 दिन का, 10-10, 12-12 दिन का, और अज्ञातवास में चले जाते हैं, है ना। अज्ञातवास किसी को मालूम नहीं होता है। पक्के से पक्का दोस्त भी होगा ना, तो उसको भी पता नहीं होगा कि भाई साहब हमारे मेरी आईआईटी में आके और जेईई का पेपर बना रहे। हर बार नया सवाल बनाते हैं, वो तो नया सवाल मिलने ही वाला है। थके हुए दिमाग से अगर आप पढ़ोगे उस सवाल को, तो अच्छा करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बचेगी? बिल्कुल नहीं बचेगी ना। आपका तो माइंड फ्रेश होना चाहिए, उत्साह से परिपूर्ण होना चाहिए आपका माइंड, तभी तो करोगे। तो बहुत अच्छी चीज है जेईई करना, और हम कहते हैं जेईई करने की सफलता क्या है और असफलता क्या है, पास कौन है, फेल कौन है। 2 साल आपने जिसको कहते हैं रगड़ के पढ़ाई की, रगड़ के पढ़ाई की ना, कम से कम 2 साल, ज्यादा भी कर सकते हो। हाँ, जल्दी स्टार्ट करोगे तो ज्यादा भी हो जाएगी, हालांकि आजकल 2 ही अटेम्प्ट वगैरह का सब रूल है, आप उधर नहीं पढ़ सकते हो, इधर तो पढ़ ही सकते हो। तो अगर आपने रगड़ करके पढ़ाई की है, जॉयफुली लर्न किया, याद नहीं किया, लर्न किया, आप सफल हो चुके। आपको जेईई का कार्ड देखने की जरूरत नहीं है। आपने उतना सारा अपना स्किल बढ़ा लिया ना, उतने सारे आपने इक्वेशन सॉल्व कर लिए, उतना सारा आपको प्रैक्टिस हो गया, उतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, आपने इतनी सारी लर्निंग कर डाली। अरे अब तो आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना जमीन पे, जरा सी जमीन चाहिए केवल आपको खड़े होने के लिए, आसमान तो फिर आप छू ही लोगे, क्या दिक्कत है। और जितना बोला जाता है ना कि भारतवर्ष का सबसे कठिन इम्तिहान है, अरे कुछ कठिन इम्तिहान नहीं है भैया। जब बच्चों के बहुत इस प्रकार के मेरे पास फ्रस्ट्रेशन वाले मेल आने शुरू हुए, तो हमने भी देखा कि क्या हो गया, आजकल जेईई वाले कठिन प्रश्न बनाने लग गए हैं क्या मेरे रिटायरमेंट के बाद। तो हमने अपने रिटायरमेंट तक का तो हमें पता था, उसके बाद वाले जो पिछले के 6-7 साल के पेपर्स हैं, वो सब हमने जेईई की वेबसाइट से डाउनलोड किए और हमने पढ़ा, देखा। हमने कहा अरे इससे भारी तो हम बनाया करते थे, ये तो हल्के बनाने लग गए, ये तो और हल्के बनाने लग गए। फिर हमने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, अगर ये पेपर आते तो हमारे जो रेगुलर फिजिक्स वाले टीचर हैं स्कूल वाले जो बोर्ड के लिए पढ़ाते हैं, वो ये भी पढ़ा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। अब तो उनके लेवल पे आ गया जेईई, पहले तो उनके लेवल से थोड़ा ऊपर हुआ करता था, अब तो उन्हीं के लेवल में है, अब तो कर सकते हैं।
तो मैंने एक पायलट प्रोजेक्ट लिया दिसंबर 2023 में, वो मेरा लास्ट एक्सपेरिमेंट है जो अभी चल रहा है। और हमने रैंडमली एक हमारे मित्र लोग, मैं तो व्हाट्सएप में नहीं रहता हूं, हमारी जो टीम है उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज फ्लोट किया कि अच्छी वर्मा साहब जो हैं वो स्कूल फिजिक्स पीजीटीज के साथ में बैठ करके और जेईई एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व करने का कैंप लगा रहे हैं, किसको आना है? रैंडमली, कोई ये नहीं क्राइटेरिया नहीं कि आप बहुत रेप्यूटेड टीचर हैं और आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है और आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, और ये कुछ भी नहीं। रेगुलर फिजिक्स पीजीटीज लिखा हुआ था जो ट्यूशन नहीं पढ़ाते। लोगों ने अप्लाई किया, हमने उसमें से 12 लोगों को ऐसे ही, हम किसी को जानते ही नहीं थे नाम वाम से, हमने 12 लोगों को सिलेक्ट किया। हमने कैंप किया 7 दिन, और 7 दिन के कैंप में रोजाना 1.5 घंटे का मेरा लेक्चर होता था इस बात के लिए कि सवाल पढ़ना कैसे, सवाल पढ़ करके सवाल को समझना कैसे, उसके बाद फिर उसको उसके ऊपर सोचना कैसे, प्लान कैसे करना, उसको बनाना कैसे। और आपको बताऊं, हमने 7 दिन के अंदर में करीब 13-14 सवाल उनके साथ हमने दिखाए उनको कि देखो इसको ऐसे हम बनाएंगे। रोजाना मेरा 1.5 घंटे का होता था सेशन कि हम ऐसे बनाएंगे। तो हमने उनको इस प्रकार से वो करके और वो शुरू कराया। और बाकी के टाइम में भी हम दिन में पूरा हमने जो वो सवाल आते थे ना जेईई एडवांस में, उसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट भी बना लेते थे, हम फैब्रिकेट कर लेते थे एक्सपेरिमेंट। वो उसको दिखा भी रहे हैं वहां पे। इन्होंने बोला कि एक चकती है, उसमें से एक दूसरी चकती काट के निकाल दी गई है, तो हम भी एक चकती लेते थे और उसमें से काट के निकाल देते थे। देखो ये रहा सवाल। तो केवल सवाल पढ़ के ही नहीं, उसका बाकायदा फिजिकल करके भी कुछ लुढ़काना है तो हम भी लुढ़का देते थे इंक्लाइन प्लेन बना करके। तो करस्पॉन्डिंग एक्सपेरिमेंट कराना, फिर बाकी के जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कराना। दिन भर हम उनको इंगेज रखते थे, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक। और डिनर पे उनको हम लोग, और प्लस उसमें से एक रहता था, कुछ सवाल हम देते थे मेरे सामने बैठ करके बनाओ, हम बताएंगे नहीं लेकिन मेरे सामने बैठ के बताओ, हम हैं यहाँ पे, आपको गड़बड़ है आप पूछो, हमसे आके पूछो, हम नहीं बताएंगे, आप पूछोगे तब हम बताएंगे। तो जो कोई आकर के पूछता है, सब अलग अलग बना रहे हैं अपना अपना, वो हमने तो तरह तरह के सेशंस हमने दिन भर किए, ब्रेकफास्ट से लेकर के डिनर तक। और डिनर पे हम उनको एक होमवर्क पकड़ा देते थे, उसमें 5-6 सवाल होते थे, और आप जो मैं बनाता था और जो उनको होमवर्क मिलता था, सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ जेईई एडवांस के पेपर से उठाए होते थे। एक भी सवाल कहीं और से नहीं लिया गया था, न कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से, न और किसी सवाल से, न और किसी सवाल से। बेसिक्स भी अगर मेरे को उनको बताना है तो भी जेईई एडवांस के ही प्रॉब्लम से हम बताएंगे। और वो होमवर्क के अंदर में 5-6 सवाल हम दे देते थे किसी किसी साल के आए हुए, और वो होमवर्क बना करके उनको दूसरे दिन सवेरे ब्रेकफास्ट पे हमें सबमिट करना होता था। और वो करते थे, वो सारे के सारे लोग करते थे। सबसे सब कुछ नहीं होता था, लेकिन ये जो एक था कि हम तो भाई जेईई का सवाल है, अरे हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। नहीं, लोगों ने सबने अटेम्प्ट किए, और फिर हम उसका डिस्कशन करते थे। जब हमारे पास आ जाता था तो उसको स्टडी करके फिर हम उसका डिस्कशन करते थे। 7 दिन का कैंप इतना बढ़िया हुआ हमारा कि हमें लगा ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट मई में किया, मई 2024 में, सेम रिजल्ट। फिर हमने वो इंसा को बोला, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी को, कि आप इसमें हमसे कोलैबोरेट करो और आप अपने सेंटर पे करवाओ और उसके पैसे वैसे भी आप ही भरो। तो इंसा ने वो जो है ना इंटरनेशनल केमिकल सोसाइटी ICS, उसको पकड़ा, उससे स्पॉन्सर करवाया, और हमारे रहने का और खाने पीने का खर्चा वहाँ से हुआ। इंसा के प्रांगण के अंदर में हमने अभी दिसंबर 27 से शुरू करके और 2 जनवरी तक ये कैंप किया है, फिर से जेईई का तीसरा। ये सबसे बढ़िया कैंप हुआ है, सबसे बढ़िया। लोग 7वें दिन इतने जोश खरोश में थे, उन्होंने इतने रील बनाए, ये किए, सबने हिप हिप हुर्रे इतना सारा किया। वो ICS की जो वहाँ आई थी उनकी अध्यक्षा वैलिडेक्टरी फंक्शन में, वो देख करके बोली 7वें दिन भी इतना लोगों में जोश खरोश है, 7 दिन कैंप करने के बाद भी। ये सोल्यूशन है, जॉयफुली लर्न करना है। और स्कूल के ही टीचर्स अगर लर्न करा दे तो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती। तो ये मुहिम है, ये एक्सपेरिमेंट है, और IITs के आप लोग हैं, आपके बहुत अच्छे अच्छे संपर्क होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, आउटरीच के आपके तमाम प्रोग्राम्स होते हैं। इसको स्केल अप करना है,
और केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी लेके आना है, मैथमेटिक्स को भी लेके आना है। हम तो फिजिक्स कर सकते हैं, बाकी तीनों चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, वो भी ले करके आना है। अपने स्कूल के टीचर्स को ही हम एम्पावर करना है ताकि ये जी के जंजाल से सबको बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. So now I request Professor Raghunath Sahu, sir, to please present a memento to our respected guest. So maybe before that, we can take a couple of questions, preferably from school students. Because one question, so one selfie, right? Otherwise, no pictures. Questions are important, eh? They have raised their hands. Yeah, so then mic देना पड़ेगा ना. हाँ. Hello, hello. Yeah, please go ahead. Sir, my question is that what do you think about the future of AI? Like it is comparable with human intelligence or not? So the question is on future of AI. Yeah. Or it is comparable with, or maybe will comparable to human intelligence or not? Yeah, you see, nothing can exceed human intelligence, right? So AI is a tool to my understanding, you know. So Professor Verma told me to reply to this. So, you know, it is a tool. So the way you use, the way you master Yeah. it, so Yeah. that matters. Okay, sir. It was there, it will be there also, nothing new. But, you know, Okay. And my second question from Professor Verma is that recently you launched a book on calculus. So can you just brief to us on that? Okay. So calculus is something which puzzles our students, because in mathematics syllabus generally a very little calculus is touched at the end of class 11, and then in class 12 we have more calculus. Whereas physics people from the very first lecture, when they start with those x equal to ut plus half at square, etc., they start using calculus. So it's a big gap. So that prompted us. In fact, my brother started writing this book, but Yes. could not complete it. So we completed that and we published it. So we have tried to do this calculus. Once again, very joyful learning. That is our principle, basic guiding principle for all activities. So the calculus book is also written in that fashion. You will see a lot of cartoons in that. Yeah. Some helicopter is going, and then people are standing on the, and then the food packet is being dropped, or some bank is there and someone is going and asking for the money and interest rate is written. Some magician is taking out from the cap varieties of things, and the audience is there and they are clapping. So you will see many such things where the whole learning experience is made in such a way that people are not serious and stressed. At the same time, the whole subject which is given, it is in utmost depth. And in fact, during this writing, 3 years I took, I learned so many new things in calculus which I did not know. So we have discussed all those things in detail, in different fashions, in different sections. And then at the end we have 2 chapters, guest chapters, written by stalwarts. Okay. And that is on calculus as it was developed in India in ancient times. From Aryabhat to that Kerala School of Mathematics, we have done a lot of calculus. We have developed calculus, the techniques of calculus, the applications of calculus in India. And I'm not expert on that. So I asked 2 of my friends, very competent friends. So they have written 2 guest chapters on Indian calculus as it was developed from time. So this book is very close to my heart, not only because I
3 years in it, but also because finally when it has come out, it has very rich content and very joyfully written. So that's about this calculus. Thank you, sir. Hello, sir. First of all, it was a very wonderful talk. Sir, my question is like, what is the benefit of asking the big questions? I mean, one day I was thinking, like, I am doing my research on galaxies, okay. So I'm observing something which is like millions of light years away, and I thought for some time, and it doesn't impact a normal human being very much. And just like he's working on satellite imaging, it directly impacts us. So how is my work, like, you can understand, like, I thought my work is not very relevant as compared to him, because his work is directly impacting humanity, Correct. while mine is Correct, not. correct. So switch over. You go to that field. No. I mean, then I thought some more, and then I concluded that since the beginning of humanity, humans are very curious creatures. Correct. Like, we are always asking how does all this thing. Right. So we can classify the things in two broad categories: one for our own satisfaction and one for our needs. So I want to know your take on this. Okay, so that was in a lighter vein that you switch. You don't switch. It's a very beautiful area to work. Okay. Now, better. Now, tell me, if an artist has made a beautiful painting which only he understands and no one else, ठीक है ना? वो जब वो एग्जीबिशंस वगैरह लगाते हैं, आर्ट गैलरी वगैरह, और मैं घूमता हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चलता है क्या है, सब एक ही जैसी लगते हैं, लाल पीले नीले वो ब्रश चले होते हैं. I just don't, I'm not able to make out कि क्या है इसके अंदर खास बात की, वही इसको प्रदर्शनी लगी है. Does it impact the society? उसका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी के ऊपर? उसने ड्राइंग बनाया नहीं बनाया, मूर्ति बनाया नहीं बनाया, क्या इम्पैक्ट है उसका? ओके, बट क्या है ना कि इफ यू आर डीपली इन्वॉल्व इन ए क्वेरी, आप कम से कम खराब काम नहीं करोगे, है ना? आपका जो माइंड है वो माइंड हमेशा एक हायर प्लेन पे काम कर रहा है. और आपका फील्ड तो बहुत अच्छा है, बिकॉज यूर फील्ड विल टेल ह्यूमंस कि तुम क्या बातें करते हो, हम इतने बड़े उतने बड़े, कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं हो, हम तो गैलेक्सीज की बात करते हैं. ये क्या अर्थवर्थ क्या होती है, 6000 किलोमीटर क्या होते हैं, और तुम क्या होते हो, 6 फुट के आदमी. तो वो जो एक अहंकार मनुष्य को होता है ना, वो अहंकार का नाश हो जाता है एंड पर्सन्स बिकम प्योर. तो ये आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इट्स काइंड ऑफ एन आर्ट, इट्स काइंड ऑफ ए फाइन आर्ट, कि आपने एक ऐसे मॉडल तैयार किया, उसने एक पेंटिंग तैयार किया, उसने एक स्कल्पचर तैयार किया, आपने एक मॉडल तैयार किया, और वो मॉडल जो है वो कुछ न कुछ बड़ा है, और आप उसके अंदर डीपली इन्वॉल्व हो, आपको मजा आ रहा है, अरे वाह कितना अच्छा, अरे अच्छा ऐसा हो गया, 2.73 केल्विन का मिल गया रेडिएशन, क्या बात है. किसी को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, नहीं भी मिलता तो भी दुनिया वैसी चल रही थी. कौन सी खेती सुधर गई उससे, कौन सी खेती उससे सुधर गई, क्या हो गया, राइट? 2.73 से ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट बना, ना कुछ और. बट वो जो एक इंटेलेक्ट है, वो जब होता है तो आदमी का जीवन खुद का एक प्रेरणा बन जाता है. दूसरे लोग भी देखते हैं कि अच्छा, ये आदमी को कोई मतलब नहीं है कि टी शर्ट अच्छी है खराब है, मेरे पास में क्या है क्या नहीं है, क्रीज बढ़िया है कि नहीं, हमारे घर में वॉशिंग मशीन है कि नहीं, हमारे घर में सोफा है कि नहीं. आप उन सब से ऊपर उठते हो, है ना? तो ये है. एंड यू नेवर नो, पता नहीं भविष्य के अंदर में कभी कभी इम्पैक्ट पड़ भी जाया करते हैं. जब डिस्कवरीज होती हैं तो उस समय पता नहीं होता है, लेकिन कभी कभी पढ़ भी जाया करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेगा तभी वो इंपॉर्टेंट है, नहीं पढ़ेगा तब भी वो इंपॉर्टेंट. इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट ऐसी चीज है, वो क्या डीएनए आरएनए की बात कर रहे थे ना, इंटेलेक्ट ऐसी चीज है कि अगर आपने वो इंटेलेक्ट का विकास किया है तो फिर वो शायद अगले जनरेशन में भी पास ऑन होगा, और आगे आने वाले लोग नहीं भी इस गैलेक्सीज में रिसर्च करेंगे तो भी उनका इंटेलेक्ट चूंकि बढ़ा हुआ है
तो दे विल बी यूजफुल फॉर द सोसाइटी. ओके, तो नथिंग टू वरी अबाउट. हमने भी जब अपने रिसर्च किए थे तो हमने यही सब सवाल अपने से पूछे थे कि ये हाइपर फाइन इंटरेक्शन की एनर्जी 2.35 है कि 2.36 है, इसको निकालने से किसको क्या फायदा होने वाला है. जब हम वो मॉसबार इफेक्ट से और इतनी इतनी छोटी छोटी 10⁻⁻8 EV की एक्यूरेसी से वो नापा करते थे एनर्जी और खुश होते थे, देखो इतनी एक्यूरेसी से हम नाप पा रहे हैं अपने इंस्ट्रूमेंट से, तो खुश तो होते थे, लेकिन ये भी सवाल पूछते थे कि इससे किसको क्या फर्क पड़ने वाला है. तो वो है, लेकिन हमने तो एंजॉय किया ना, हमें तो मजे आ गए ना. और वो हेवी आयंस हमने जब उस वक्त उसके एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे तो हमारे जो स्टूडेंट थे वो ग्रेफाइट के ऊपर प्रोटॉन्स बम्बार्ड करके उसमें मैग्नेटिज्म पैदा करना चाह रहे थे डिफॉर्मेशन से, वो हो नहीं रहा था. तो हमने उनको कहा कि अच्छा कार्बन है ये, उधर से हाइड्रोजन ला रहे हो, और कार्बन और हाइड्रोजन की तो इतनी अच्छी पटती है, वो तो तुरंत मॉलिक्यूलर ये वो बना बनू लेंगे, तो कहाँ का ग्रेफाइट और कहाँ का मैग्नेटिज्म. तुम ऐसे करो, कार्बन को कार्बन से ही बम्बार्ड कर दो, ग्रेफाइट को कार्बन आयंस लाओ और कार्बन आयन से बम्बार्ड करो, तो फिर उनको कोई ऐसा कुछ नया करने का मिलेगा नहीं, तो फिर वो ग्रेफाइट ही रहेगा, सभी मिलकर ग्रेफाइट ही रहेगा, तो देखना शायद होगा. उसने किया साहब, निकल में जितना मैग्नेटिज्म होता है, निकल में जितना मैग्नेटाइजेशन होता है, उतना मैग्नेटाइजेशन हमें ग्रेफाइट में मिला. हाँ, इतनी खुशी हुई हमें कि ये जरा सी इंसाइट कि प्रोटॉन से नहीं करके हमने उसको कार्बन से बम्बार्ड किया ताकि यहाँ कोई केमिकल बॉन्डिंग वगैरह का चक्कर बीच में ना फंस जाए. एंड दैट गेव मी दिस काइंड ऑफ मैग्नेटिज्म. उस पेपर की भी बड़ी चर्चा रही, और जिस जर्नल में छपा उसने फ्रंट पेज के ऊपर हमारे वाले फोटो वोटो डाली, ये किया वो किया. हमें पता था कि इसका कभी उपयोग हो भी सकता है, अगर ग्रेफाइट से मैग्नेट बनाने की कला विकसित हो गई तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मेरा उसके अंदर में मन नहीं है, मुझे तो अपने प्रयोग खुद के करने हैं. तो बट वो जो एक खुशी है, कैसे भी करके खुशी मुझे मिल रही है, मेरा इंटेलेक्ट का विकास हो रहा है, दिस इटसेल्फ इज एनफ. ओके, Maybe the last question. There are several questions. तो सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया कि आप न्यूक्लियर फिजिक्स में मतलब बहुत अच्छा महारथी है, एक तरह से बोल सकते हैं, और मैं भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ता हूँ, तो मतलब एस्ट्रोफिजिक्स. तो मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मुझे नहीं पता था. तो जैसे हर स्टार्स होते हैं तो उनकी एक लिमिट होती है कि वो उससे ज़्यादा मास को अपने अंदर नहीं रख सकते, नहीं तो वो श्रिंक करके ब्लैक होल बन जाएंगे, या तो सुपरनोवा बन जाएंगे, या नेबुलास बना लेंगे. तो मतलब हर स्टार का वैसे ही फ्यूजन लिमिट होता है कि वो आयरन के मतलब एटम तक फ्यूज कर सकते हैं, है ना, बाकी एटम्स को आयरन तक फ्यूज कर सकते हैं. पर उसके बाद के एटम, जैसे अपने पास 108 एटम्स हैं अभी, एलिमेंट्स के वो हैं, तो उसके बाद के एटम्स कैसे बने? ओके, ठीक. हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा मालूम है, बता देता हूँ. कुछ गलत बताऊंगा तो आप सही कर देना. होता क्या है कि जो आपने सुपरनोवा की बात कही, और वो जो होता है विस्फोट, तो बहुत थोड़े समय के अंदर में बहुत सारा प्रेशर जनरेट होता है, बहुत सारा टेम्परेचर जनरेट होता है, और उस प्रेशर और उस टेम्परेचर के चक्कर में जो वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है एनर्जेटिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाहर से तो हम एनर्जी दे रहे हैं ना उसको, तो वो पॉसिबल हो जाता है ना, राइट. जैसे अपना फोटोसिंथेसिस है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं. नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है. ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जो रचना है, उसकी जो एनर्जी है अपनी, वो ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की जो मॉलिक्यूल्स की रचना है वो एनर्जी कम है. बट सूरज से चूंकि उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जा रही है, तो ये भी संभव हो जा रहा है, फोटोसिंथेसिस हो जा रही है. उसी प्रकार से आयरन के आगे नहीं फ्यूज कर सकता है का मतलब है कि अगर आप कराने की कोशिश करोगे तो जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा
उसकी जो अपनी एनर्जी है, मास एनर्जी, वो अधिक है और ये कम है। जो कंस्टिट्यूएंट है वो कम है मिल करके और वो अधिक है, इसलिए वो नहीं जा सकता है। सबसे टाइटली बाउंड है वो आयरन। लेकिन अगर बाहर से एनर्जी पंप कर दूं तो ले जा सकता हूं ना। तो वो जो सुपरनोवा का विस्फोट होता है उसके अंदर में इतना प्रेशर और टेम्परेचर और ये और वो जनरेट होता है कि उससे वो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलके उतने से समय के अंदर में बाद वाले सारे एलिमेंट खड़ 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 एक झोंक के अंदर में बन जाते हैं। वही फिर हमें दोबारा जब वो डिस्पर्स हो जाते हैं फिर कभी इकट्ठे होते हैं, कोई नया स्टार बनता है, कोई नया प्लेनेट बनता है, तो फिर उसके अंदर में वो चीज़ें आती। ठीक, ओके। Okay, thank you. So let's end the program here. We are getting late also. Let's give a big hand. In fact, from IIT Indore, we are really thankful to you, sir, for coming to IIT Indore and for the really exciting session and educating our next generation, which way, joyful learning and, thinking of different situation, from situational learning and all that. So I think our science education has a bright future with this next generation. Thank you so much.